all our members joining us in this seminar. Today, today Neeraj Kumar Tiwari was supposed to be the chief guest here on this occasion, but unfortunately he had to rush to Allahabad, being his parents are serious in some Allahabad hospitalized. So he has to go there. So he will join, but we cannot say at what time he will join. So we'll have some time schedule shall some differ, will some time will there. So still then, I like to welcome our general manager of Bank of India, Neeraj Kumar Tiwari, who will join, who has promised to join, but at what time he will join, he cannot be assured because he is in hospital to attend his mother and father there. I would like to welcome J. Rajkumar. He is the immediate past chairman of Institution of Engineers India. Since our chairman is not available, he is a superintendent in electricity board. Due to some official work, he is not in Kanpur. So in place of him, our immediate past chairman of Institution of Engineers Kanpur local center, he is Dr. J. Rajkumar. He is the professor in IIT Kanpur. He will take his responsibility. I like to welcome Mr. Ramakant Yadav, who is also an engineer in textile and is the Honorary Secretary of Institute of Engineers India. I would like to welcome all of you, and we'll continue with the technical webinar, and we'll discuss about the non-performing assets. And today only I will be the only speaker. In this topic, we'll discuss who is the responsible for NPA. Actually, we are studying everything, but each and every times bank is blaming that value is responsible for NPA. So we'll try to discuss in this matter. After all, who is responsible for that? Today we have a special guest from Rajkot, Gujarat. Actually, all of you are knowing that in Gujarat, one of our valuers have been charged and he has been put into jail without any fault. So to know if something about the back history of there, so I have invited one of our friend Nilesh Sachdeva from Rajkot. He's from Gujarat. And from Rajkot, valuers have been punished by the unfortunately he has this was not mistake. Still then he has been punished. And he's I think in some police custody or jail. I think so. Regarding this, I have requested one of our friends, Nilesh. He has already joined in, so he'll talk about the matter. Now, I'll before ending the president speech, just after speech, Nilesh, because Nilesh has to left the, he has come out for us for 15 to 20 minutes. We have to attend the marriage ceremony there. So whenever he'll talk about the Rajkot issue, so if any of you have any doubt, just ask him so that he will, after taking permission from him, will leave the team because he has to attend some other programs. Then after that, we will start our program. Now, in this occasions, as a president, I would like to request all of you to join our Foundation Day, which we are going to celebrate in Kanpur on 17 June, this June, that is in Friday, in Institution of Engineers premises. If at all you are not in a position to come back, I request all of you, since this is an association and you are the members, this becomes the privilege of all of us to organize some seminar or some technical talk or some meeting, so that we should be happy enough that we are going to organize or we are going to celebrate our Foundation Day on 17th June. So if at all you are not in a position to come out to Kanpur, last year we had done it offline, but since due to Corona, since Corona had gone, so this time we are going to do it offline. So wherever you are, all of us are requested to organize some small get together or something on 17th June, so that we'll be happy enough that all of our members are with us and all of our organizing some seminar or some meeting on these occasions. After that, I have mailed all the members regarding the national seminar. Last year we had organized it on the last December because we had no other alternative, and in the 2021 we were supposed to organize it. That's why we had gone for December. But this time we are going to organize either on 2nd of October or 4th of October. I mean 2nd Saturday of October or 4th Saturday of October. These 2 dates have been council have been decided, but till date out of 2 we have not decided the exact date. So I like to request. I have already sent the mail to all the members. If you are interested to organize the national seminar in your city under the guidance of your chairman secretary, you just propose it, and the proposal should come to us within or before 17 June, and so that will be in a position to finalize the venue of the national seminar, which we are going to
organized either on second Saturday of the October or on fourth Saturday. These two dates, either of these two dates, we are going to organize. So, on this, I like to end my president's speech because Nilesh Sadhwa sir, he has given a important time. I like to request him to talk about the what happened in Rajkot and what about our condition of valuers and all the valuers throughout India. What step we should take? We just cannot go on closing our eyes and bank is imposing some conditions. So we should know what is happening, what is to happen, and what are steps to be taken by all of us. See, this is a national problems. Now these things have been happened with one of friend with Rajkot. It will happen in our city also. So we have to be a go get together and we have to take some decision so that in future such thing will happen. If value is doing mistake, that is other part. But without doing any mistake by the valuers, he had been taken some custody or some action have been taken. This is not a good. So I like to request Nilesh Sadhwaji to come forward and to talk about the what happened in the Rajkot. Mr. Nilesh Sadhwa, please. Sir. So kind of you. I'm indebted to you and to our association to allow me this chance to speak to all our friends in Uttar Pradesh. I will just brief you quickly about what were the facts of the case and what are our learnings from it. What is it that we need to do in terms of safeguarding our interests as well as making our associations more strong, making representations to the institutions as to what is our role, what is it that we are doing, what we are capable of, and what is beyond us, our capacity. So, in this particular case, SBI is the lender where the valuer was invited to valuate a property in 2017 September. He went to the bank. It was a remote location, so he went to the bank where he collected the documents. Now, as is the practice here, you click the photographs from the file. They don't give you even Xerox copy. Or set is also not provided. In spite of at least having made 100 representations to them in writing and in verbal, we don't get the set of documents. The advocate gets a set, the bank gets a set. It's only the valuer who doesn't need anything, and they will go to the bank and click the photographs. So he visited the bank, he clicked the photographs of the documents, which included the layout plan, the approval, the completion, the ECR report, the title clear report, title investigation report, what you may call, whatever. And the lender was called to the bank. The lender in the borrower was called to the bank by the banker. And the banker said that you can please accompany him and go to the property and do your visit, inspection. Inspection was completed. And the property was identified correctly as per the layout provided and all the documents and everything. And the valuer submitted his report. The report was for only 6.35 lakhs completed value. A mere amount of 6.35 lakhs completed value, 85% stage. The total value adjudged was about 8.3 lakhs or something. And he gave his report. December, he got a call, 2 more reports you have to submit. So he said, sir, उसका अभी का पहले का बिल भी बाकी है. बोले हाँ, वो आप पहले इसका कर दो, हम फिर वो भी देख लेते हैं. 2 more properties, the same group of, and absolutely the neighboring properties. So 2 more properties, documents it took. He visited the property, provided the report. So 6.3 lakhs is the completed value for both of these cases, and he provided his report, submitted his report. And later he got a call from the bank saying that ये क्या आपने किया यार, आप क्या करते हो यार? He said, what is the problem? So he said, we have already disbursed 10 lakhs in each of these cases. The estimate is for 12 lakh rupees construction cost. And you are paying 6.3 lakhs. And you have said that it is under construction property. We have already done the final disbursement. So the valuer said, sir, I'm unable to comply with your requirements because the construction is incomplete. The total value of the property is 8.3 and the justified value for this case is only 6.3. And I have that is what I have already certified in my report. So the banker said that you cannot make an amends to your report, then this report is useless to us. So he said, sir, then give me my report back.
So he said, since your report was unused, not of any use, we trashed the report and threw it in the trash bag. I don't have your report also, and we cannot make payment to the party because now we have to get a report from another valuer. So he didn't get the fees. There was no assigned appointment letter, and they said we are not using the report. 4 years hence, now in September 2021, he gets a letter from the bank saying that you have done certain valuations where you have done flawed valuations, so please explain yourself. So he asked the bank that, can you please explain which reports are you talking about? 1, 2, 3 reminders, several visits to the branch. Finally, they replied that these are the 3 cases that you have provided a report, and where there is no construction as on site, and you have colluded with the parties to make as a part of fraud, and you have been a party to the fraud, and because of that the bank has incurred loss. So he provided all the documents that were, and he went back to the site and checked that where have I gone wrong, but whatever he had done was right, but the layout was forged, the approvals were forged, the completion certificate was forged, the TCR के अंदर में जो लिखा था कि इसकी receipts है of the property tax receipts which the lawyer had received. He had written in his TCR report that these so and so receipts are given to me. Those receipts were also forged. It is now known to us that all the documents were forged. What was actually happening is that the plot which was actually to be valuated was different in the same layout, but there was no construction there. A different layout, forged layout was provided to him. And the disbursement in any case was done beforehand. So how did he become a cause to the fraud? How did he become a cause of the action? And in any case, bank never made a payment to him. He was never appointed. His report was never accepted. But he was named in the FIR and he applied for anticipatory bail. The anticipatory bail at the district level was rejected on the ground that the right to custodial inquiry of the inquiring officer will be compromised if bail is granted as requested by the complainant, that is the bank. Now he has gone to the state level high court requesting bail, anticipatory bail, and he's absconding because there is a good vacation in Gujarat High Court, and hence probably his matter should come up for hearing very soon. But this is the situation, and several banks have already depaneled him, considering that this anticipatory bail is rejected, and hence, and somebody, one of our members, has circulated all of these to each bank, giving false information that he has colluded, he has made a fraud, and he has made false reports. Entire process, if you look at the entire process, nowhere will you find that there is no due diligence. Unfortunately, he could not make out the original plans. The original approvals were in the file which he kept. He has the photographs of them, but he could not make out that these are not originals, but these are forged and fake documents, which are still in the bank file. And the Nagarpalika has already given a statement to that effect, that all the documents that you presented to us are actually fake and false documents, and we have never given these approvals. So how is the value responsible? And what do we do to safeguard our own interests? I'm over, sir. Over to you, sir. Actually, what happens nowadays, टोपी पहनाने के लिए बैंक वाले बैठे हो वैल्यूर्स के ऊपर, तो उसमें मेरे ख्याल में हम लोग के वकील से कंसल्ट करनी चाहिए. और जो वैल्यूर देखिए पैर में कुल्हाड़ी वही मारता है, जो यू सेड नो, सम ऑफ द वैल्यूर्स हैव इन्फॉर्म्ड टू द बैंक्स, दैट मीन्स हमारा घर में हमारा ही दुश्मन बैठा हुआ है. तो हम तो ऐसे अभी मदद करने के बजाय हम उसी को कर रहे हैं, फिर गलत अच्छा चीज को सही चीज को हम गलत साबित करने की कोशिश करें बैंक में, तो ये निश्चित बात पे गलत है. तो उसमें हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा मेंबर्स बैठे भी हैं, तो कल को ये भी हादसा हो सकता है हमारे साथ भी हो, तो जो जानकारी रखते हो कृपया आगे आए, क्योंकि सजवा जी को भी जाना भी है, तो कुछ हमको सुझाव दें कि हमें क्या करना चाहिए. और हम सदस्य से ये पूछेंगे कि हमारे आश्वासन से वो क्या मदद को चाहते हो, तो भी बताए खुल के. शर्म को देखो, हम भी पहले और देखे हम, हाँ मतलब कल को ये हादसा हम लोग किसी से हो सकती है, तो हम आपको ही मदद मांगेंगे.
तो आपका कोई इससे हम चाहते हैं हमसे कोई आपको जानकारी ले तो भी दे, जो मेंबर बैठे हैं जिनको इस बारे में ज्यादा ज्ञान हो वो भी आगे आके कुछ ना कुछ सुझाव दे, ताकि कम से कम हमारा दिल का बोझ हल्का हो। प्लीज कम फॉरवर्ड। ZO लेवल पे, LHO लेवल पे, हर एक लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन अपना भेजा कि दिस इज द बेसिस, these are the documents, this is the actual property, this is what I have done, and I have done my valuation after your disbursement. Every detail has been sent to the bank. In spite of that, nothing has happened. Now, when we have made up this thing, we have become the entire fraternity, at least in our region, has come up together. We had a meeting with the DGM. He's saying that now we will try to look into the matter, and we have put an investigating agent committee also, and we will try to, if at all it is our mistake and we should not have made the valuer as accused, then we will try to retract our statement. And for the future thing, he is saying that I have given instructions to all the branches within my module and within my region zone, that any letter of appointment must clearly state what documents the bank is providing to the bank. That is one thing he has promised. There are other discussions done as well, of course. You must have seen the letter that Rajkot branch has submitted to the Z office, zonal office, and the DGM. We had a very long meeting with the, we had a 150 minutes meeting with the DGM. And he has already appointed an investigating committee also. They have made a visit to the property. They have seen all the documents. They have seen the property, and we have shown the documents as per file and the actual real documents. But still the fact is that has not solved the problem so far. We are hoping that going forward, maybe relief will come to the valuer. But going forward, they have promised that all the appointment letters will clearly state. Now, what letter of appointment is being given by SBI to us at this point of time? It says that balance documents where are missing, you must procure directly from the part. The SBI policy of 2018 or 19 or whatever it is clearly states that the valuation will only be provided based on the documents provided by the bank, and the valuer and the no documents will directly flow from the borrower to the valuer. But in contravention of their own policy, the appointment letter that they are giving is saying that you must procure all the balance documents. Now, when I go to the party, how am I to know whether real documents, and I am getting a different set, the bank is getting a different set? I will not even be able to justify that I did it based on the documents that were provided to the bank. This is a very dangerous situation. We must always accept all the documents only from the bank, and we must, either if suppose they are not giving a list, then what we have now decided is that we will make a list. On the appointment letter itself, we will make these documents are provided to us, received, and then we will ask them to countersign. The bank to countersign that okay, these 5 documents are provided by the bank basis which I am going to do valuation. That is what we have decided. Your suggestions on to that also are welcome. Sir, what about the working condition of Rajkot now? Have you stopped working there, or some of the values are working there? So we stopped our work on last Monday, so it has now been 14 days. We are not doing work for SBI since last 14 days. Again, unfortunately, as you understand, some remote areas and somewhere valuers from outside are called, and they sneak in and do a valuation and try to give a report in the back day. A lot of things are also, not lot, but some things like that are also happening. But by and large, the bank is feeling a pinch, and that is why the DGM devoted 150 minutes to us. Who else otherwise is bothered, sir? We are very small, small shit in the process of in comparison to bank. But only when the pinch comes, do they want to call you? Do they want to listen to you? There is no rule to verify the title of the documents. In this case, you may take the other way around equally, because the documents given to him were not of the property which he was shown. This is the correct thing, no? So there are 101 decisions of the High Court and Supreme Court, and valuer is nowhere responsible for checking the verifying the title of the property.
Sir, unfortunate part here is that the document is right. Document means the sale deed is right, but the layout and the approval and the completion, all the drawings, which is the technical part, all of those are forged, and they are are not the same. Of course, when it goes to the court of law, he will get the relief because we understand that documents include drawings. Documents include all these are documents. मेरी document की फाइल में मेरा प्लान भी होता है, लेआउट होता है, वो भी डॉक्यूमेंट ही है. लेकिन अभी वो पुलिस डिपार्टमेंट उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर रहा है और अभी बैंक उसको इस तरह इंटरप्रेट करवाने नहीं चाहती है. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है सर इसमें कि जो हमारी बैंक की अगर आप एसबीआई की फॉर्मेट देखें जो हमारी 2020 से आई है, ऑफ कोर्स जब ये रिपोर्ट उसने दिया तो उसने उसमें नहीं लिखा है कि आई हैव चेक द ऑथेंटिसिटी जेन्युइननेस ऑफ द प्लान. बट अभी जो आप रिपोर्ट एसबीआई को दे रहे हैं उसमें आप लिख रहे हैं कि आई हैव चेक्ड द ऑथेंटिसिटी द जेन्युइननेस ऑफ द प्लान. यू आर मोस्ट पीपल आर राइटिंग यस टू दैट. हाउ डेंजरस इट इज. Question is, सर. the property was shown by somebody to him. Yes sir. The property along with somebody, maybe manager or maybe the owner or somebody. Yes sir. The bank must have gone there. Yes sir. Then somebody has misplaced the property before him. So it is the other way around only, that the property is not as per the documents which was shown to him. You are fully right, sir. Unfortunately, that is not helping him right now. The police is saying very clearly that if you are as white as you say you are, then the court will absolve you of your liabilities. Right now, my job is to suspect everybody. So I am suspecting. Sir, we can find out certain laws in this where it's actually it is the same thing. If we say blacklisting value cannot be done just like that without the following the वो ऊपर बहुत places है सर इसमें. Value is not more negligence would not make a mere negligence would not make a professional or a criminal offence in the essence of tangible liability. Absolutely right, sir. And here, even the case of negligence is also not there. In this particular case, it is not a matter of negligence. We can search out a number of cases where it can be. So there are judgments of Raj Gopalan, Hemraj Ponsa, all of these are supporting our case in very much. But that will come up when it comes up for hearing. Police department is not relying on the court cases or the court judgments. We have submitted all of these judgments at every level, sir. But nobody is interested to look at that. But it is the court who has to take the decision. Sir, that you understand that by the time the matter will come up into court, the person's life will be finished. That's not some rules, decisions only is true also, which are reversed. And I have seen these cases, so many cases have been cropped up, and the valuer is nowhere responsible for a wrong property. Especially when either the manager goes with him or and one thing more, sir, when the manager passes the bill, he writes, I have visited the site, and I agree that the site seen by the valuer and creates given by him are reasonable, and I accept. Sir, in this particular case, the manager is a party. And what he should be, he is a party He is behind bars. He has accepted his role. But bank is under tremendous pressure from the union. So bank wants to portray that valuer was also a party. strange case. मुझे इतना बताओ सर, ये बात हम सब भूल जाए, ये भी बताओ ना सर कि जो फंडिंग आपने दे दिया है उसके बाद जिसका मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ उसके लिए मैं कॉज ऑफ एक्शन में कहाँ आया सर? मैं मैनेजर गया ना, उसके बाद जब पेमेंट करनी थी अगर साइट विजिट किया जो साइट है वो ठीक है जिसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ,
How can he do it? Say कि मैं responsible. तो वही बात है ना, if he is responsible, why should the value be penalized? No, the bank is saying that he has polluted. All of them have polluted. देखिए यहाँ एक केस हुआ था, the AGM of the bank has been asked only whether they have been left. He was doing all the working, and they have suspended the man, and this is also stopped. He has retired and he is pension and everything is stopped. It is the how the bank takes it. सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। There are so many cases coming up, sir. I am a very आई एग्री सर। ठीक है दास सर, मैं आपकी इजाजत लेता हूँ सर। ठीक अगर सर। आप लोगों को कोई भी सुझाव हो तो आप दास सर को कह सकते हैं, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, तो हम कुछ उसके ऊपर, अगर आपके पास ऐसा कोई जजमेंट्स है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वी आर ऑल एक्टिव वैल्यूअर्स, वी ऑल आर इनटू द प्रोफेशन सिंस मेनी इयर्स, वी हैव कलेक्टेड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज। मिशन उनको फोन करो, यादव जी को इंस्ट्रक्शन करने के लिए। हम अपने हाथ लंबे करके आपसे भीख मांग रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो है आप हमको दे सकते हैं। दूसरी, हम अभी हेल्प नहीं मांग रहे हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी आपके पास आएंगे, लेकिन अभी हमको कुछ सूझ नहीं रहा है। इतना मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, अच्छा सुझाव है या जजमेंट है, प्लीज हमको शेयर करें। बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, और उसके लिए हम आपके लिए हमेशा के लिए आपके वी विल बी ऑब्लाइज्ड फॉर एवर फॉर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, ये हमारा फर्ज बनेगा, हम खुश होंगे अगर हम अपने आसुन तरफ से आपको कोई भी टेक्निकल डाटा प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये लेन देन का तरीका कल को आपको मिले तो आप कृपया मेल पे डाल दीजिए, और जैसे मेल पे आएगा मैं सदोज जी को फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू। जैसे मैंने बताया कि हमने उनको इसमें ऑलरेडी हेमराज कोंजा एंड राजगोपालन वाले केसेस साइट किए हैं। वो केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको हमने साइट किया है, और कोर्ट के हाई कोर्ट के जो सीनियर काउंसिल है उन्होंने कहा है कि इसके बेसिस पे आपका केस चल ही नहीं सकता है। तो मेरे हमारे पास है, मेरे ख्याल सर एक लेटर रिपेंड हमको सीजीएम को सीएमडी वगैरह करना चाहिए। हम डीजीएम लेवल पे न रह के हम इसको जीएम सीजीएम को भी अप्रोच करें और सीएमडी को अप्रोच करें, क्योंकि वो लोग जो है ना, ये जो नेता नगर यूनियन बाजी है, ये आपका एजीएम डीजीएम तक सीमित रहता है, ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है बिल्कुल सही फैक्ट आप अपना सीजीएम को लिखिए और कॉपी टू सीएमडी कर लीजिए। ठीक है सर, मैं आपकी बात का आई हैव नोटेड योर थिंग, एंड उसके सिवाय के जो भी सुझाव है, कोई भी जजमेंट्स वगैरह, प्लीज शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, आपको शादी में जाना था कहने पे आए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कुछ बोले, क्योंकि हमारा एक्चुअली आज चेयरमैन साहब से है नहीं, और उनके जो आईपी चेयर उनका फोन लग नहीं रहा, आईटी प्रोफेसर जे राम कुमार जी। तो जे राम कुमार जी कभी भी बाद में आ सकते हैं, तो क्योंकि इंस्टीट्यूट से हमारा एक पार्ट है, हम लोग सब लोग इंस्टीट्यूट मेंबर्स हैं, तो मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा, हमारा रमाकांत यादव जी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट की, वो भी दो शब्द कुछ बोले। चेयरमैन दास साहब, आप एक कन्वीनर का भी काम कर ले रहे हैं और सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह एसोसिएशन आपने जिस तरह से ऑल इंडिया लेवल पर खड़ा किया है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हर महीने रेगुलरली जिस तरह से आप यह वेबिनार कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग भागों से जो भी आपके वैल्यूअर मेंबर हैं या एक्सपर्ट हैं, उनके विचारों से सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह निश्चित ही बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है, और लगातार हम भी इसको ज्वाइन करते हैं, सीखते रहते हैं हम लोग भी कि कैसे मतलब जो है वैल्यूएशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लोग इधर डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट मशीनरी के वैल्यूएशन में क्या प्रॉब्लम आती है, लैंड के वैल्यूएशन में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको करना क्या चाहिए वैल्यूअर। इससे क्या है, निश्चित ही इन वेबिनार के माध्यम से जो वैल्यूएशन के वर्क में निश्चित ही सुधार आ रहा होगा और आ रहा है। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आप रेगुलर ये वेबिनार कर रहे हैं, ये चलता रहे, लोग उससे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब।
थैंक यू सर। इसके बाद आपका लेक्चर होगा। जी 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 बताना था जो है जी इंजीनियर दास इज चार्टर्ड कंसल्टेंट इंजीनियर एंड वैल्यूअर्स, registered valuer of Ministry of Finance, Government of India, and he is panel valuer of banks and financial institution. Presently, he is secretary of Utkal Samaj, chief editor of Hamara Shahar, editor of TechnoSend, executive member of Institution of Engineers, and president IWA, and life member Ward Odisha Society. In the past, he was secretary of Institution of Engineers, secretary of Institution of Business Kanpur, secretary and chairman of Institution of Business Kanpur, and district governor, Alliance International District. And I request Engineer Das to deliver your talk. Thank you, sir. थैंक यू सर। एक्चुअली आज आपसे बताऊं, आज स्थिति ऐसा है, हमारा सेक्रेटरी साहब का पापा को उनका तबीयत खराब था, आया था ऑपरेशन, उनको छोड़ने जाना स्टेशन, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी वोट ऑफ थैंक्स आना मोबाइल पे करेंगे। आनंद सिंह कहीं दिक्कत है, और हमारा जो चीफ गेस्ट थे उनका पापा का तबीयत सीरियस कुछ हो गया तो आज चले गए वो इलाहाबाद, तो हो सकता है रास्ते में कहीं ज्वाइन भी कर लेंगे बाद में। तो इसलिए आज का पता नहीं दिन कुछ ऐसा लगा कि हमारा बाबू साहब लोग जो ऑफिस बियरर्स है वो नहीं रह पाए, तो इसलिए हमको मजबूरी से चलाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। तो हम अपना टेक्निकल टॉपिक पे आएंगे। हमें देखिए, हमें इसमें टॉपिक में एक चीज देखना जरूरी है कि द प्रॉपर्टी हैव बीन इंस्पेक्टेड और प्रॉपर्टी हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक मैनेजर, तो भी काम बनता है। ये चीज वार्ड उन्होंने को लिखा नहीं होगा, तो इसलिए हम अपना हर रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कैवेट डालना शुरू करें, तो होता है अगले बार हम इसको डिस्कस करें। ये बड़ी जरूरी है। हम हर पॉइंट पे, जैसे मान लो को ऑरेंज लैंड है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑरेंज लैंड। देखो ऑरेंज लैंड आइडेंटिफाई का हमारे को अधिकार नहीं होना, हमको जानकारी भी है, तो अगर उसमें लिख दी जाए कि मतलब बैंक इज रिक्वेस्टेड टू कंफर्म या वेरीफाई द ऑरेंज लैंड फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटी, तो हमारा सेफ्टी गार्ड जितना चाहे कोशिश हो उतना अपना सेफ्टी के लिए कोशिश जरूरी है। ये पर्टिकुलर केस में, राजकोट वाली केस में वेल्लोर ने ऐसा कोई लिखा नहीं होगा, या तो 2 साल पहले का रिपोर्ट दिया, पेमेंट भी नहीं मिला, उसके बाद मांग रहे, एक लेटर उनका तो मेल करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारा कमी हम लोग का रही है। तो हम लोग पढ़ लिखने के साथ साथ कुछ थोड़ी दिमाग को तिरछा भी घुमाना जरूरी है, ताकि बैंक के साथ हम मतलब कदम से कदम उठा के चले। ताकि देखिए, हमारे साथ बैंक वाले भी कुछ ऑफिसर लोग होंगे, मैं उनका किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही है, हम लोग बैंक हम सभी लोग एक दूसरे पार्ट है, तो सबको अपना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन खाली फैमिली में बिना जिम्मेदारी में वैल्यूर के माथे टोपी पहनाना, ये सबसे बड़ी गलत चीज है और चिंता का विषय है, जिसमें हम लोग होशियार होके आगे के लिए इस पर क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कस करना जरूरी है। तो आज हम जो है नॉन परफेक्ट, एक्चुअली नॉन परफेक्ट अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंट जब खराब होता है तभी वैल्यूर का माथे में आता है। तो इसलिए अकाउंट खराब क्यों होता है, उसका जिम्मेदारी कौन है, हम जरा इसी बारे में सोचेंगे। हमारे आधे पौने डिस्कशन बाद इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर ऑल, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट गोइंग टू बैड। तो अकाउंट जो डेफिनेशन है, इसका 2 लाइन खाली पहला लाइन बढ़ाता हूं। एन एसेट इंक्लूड ए लीज एसेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग व्हेन इट इज सीज्ड टू जनरेट इनकम। जब कोई प्रॉपर्टी इनकम, बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं करेगा तो उसको हम कहते हैं एनपीए। अगर प्रॉपर्टी खराब हो, थोड़ी देर मांगते हैं प्रॉपर्टी खराब है, फिर भी बोरोवर ने आपका किस्त देता रहा, तो बैंक से कोई मतलब, बैंक को बस किस्त आना चाहिए। जब उसका निपट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी सही होने के बावजूद अगर बोरोवर अपना हर महीने का किस्त नहीं देता है, मतलब जब उसका बैंक का इनकम जनरेट नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे इनकम नॉन एनपीए कहेंगे। तो एनपीए में हमें सबसे पहले कोशिश होना चाहिए। देखिए, बैंक का सोच, हमारा सोच में दोनों डिफरेंस है। बैंक सोचता अपना बोरोवर अच्छा है, हम सोचते हमारा प्रॉपर्टी अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी अच्छा होगा वो जिंदगी भर बोलता रहेगा हाँ मैं अच्छा हूं। लेकिन बैंक जो सोचता है कि बोरोवर अच्छा है, बोरोवर को खराब होने में समय नहीं लगता, क्यों परिस्थिति ऐसा होता है कि उससे बोरोवर खराब होता है लेकिन प्रॉपर्टी खराब नहीं होता। तो इसलिए हमारा सोच बैंक का सोच में डिफरेंस है। हमको अपने सोच से काम करना चाहिए। हमें जो प्रॉपर्टी अच्छी लगे उसी का हम वैल्यूएशन करें, बैंक के कहने पे नहीं करें कि प्रॉपर्टी यार भैया वो बोरोवर तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लोन चला रहे। लोन हमारे यहाँ कानपुर में मैं बताऊं, स्टेट बैंक डीजीएम परेशान हो गए एक लोन करने के लिए, लेकिन हम उसको लोन होने नहीं देंगे, मैंने मना कर रिपोर्ट नहीं देंगे। अब बाद में 2 महीने बाद पता नहीं अकाउंट एनपीए हो गया, करोड़ों का एनपीए बैंक घुस गया,
क्योंकि प्रॉपर्टी आदमी उसी टाइम पे सही इसलिए था क्योंकि बैंक का बहुत बड़ा कस्टमर था, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, जो भी हम वैल्यूएशन करें, हम प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी को बोलना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, हमें बोरोवर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए दूर दूर तक। अभी सबसे चिंता का विषय ये है, गवर्नमेंट आरबीआई ने गाइडलाइंस के हिसाब से, देखिए जब बिजनेस करेंगे, आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, आप जो बैंक का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, आपका 5-10% पैसा बैंक के डूब जाता है, बोलो हम मान के चलो 10% डूब गया। ऐसे ही जो बिजनेस कोई कर रहा, कोई भी कर रहा हो, तो उसका ये है कि 5% का घाटा तो होना ही होना। तो आरबीआई ने जो गाइडेंस दिया है, परमिशन एनपीए लिमिट है वो 5% है। तो 5% तो जो एनपीए होगी तो उसमें किसी का कोई जिम्मेदारी, मतलब किसी का कोई चिंता नहीं। 5% के ऊपर जहां पे होती है वहां पे थोड़ी चिंता का विषय होती है। और हम इंडिया में 5% का लेवल क्रॉस करते चले जा रहे हैं, बहुत क्रॉस करते चले जा रहे हैं। ये हम एक टेबल फॉर्म में इसके पीछे दिखाएंगे कि कौन से साल में कितना हमारा कितना करोड़ का, कितना मिलियन का एनपीए हो चुकी थी, जो लिमिट से कितना ज्यादा है। अगर एनपीए होगी, हम देश के विकास के लिए खाता आदमी होना चाहिए। अगर एनपीए होगी तो देश का ग्रोथ नहीं होगी, अब वैल्यूअर को पकड़े जाएंगे। और जिम्मेदार कौन है? हम सबसे पहले, हम अभी जो भी डिस्कशन करेंगे हम अपने दिया रखेंगे, हर पॉइंट पे आप देखिएगा जिम्मेदार कौन, बैंक मैनेजर या वैल्यूअर या और कोई है। तो हर क्वेश्चन में जो भी हम पॉइंट डिस्कशन करेंगे, आखिर में हम ये डिस्कशन जरूर करेंगे आफ्टर जिम्मेदार कौन है, किस पे एक्शन होना चाहिए। अभी देखिए, बोरोवर जो लोन लेता है उसको हम बोरोवर कहते हैं। जब मान लो मेरे पास बैंक में गया, मैं आज बोरोवर गया या जो कस्टमर गया, मैं एक कस्टमर, अगर अकाउंट खोला, आपने क्या अकाउंट खोले, आप कस्टमर हो गया। मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं एक बैंक के कस्टमर हूं। फिर हमने क्या कहा, मैंने कहा भैया हमें 10 लाख चाहिए, तो हम बोरोवर हो गए। एक आदमी कस्टमर था, कस्टमर से बोरोवर हो गया। फिर बोरोवर से बात क्या हुआ, अगर मैंने लोन ले लिया, लोन नहीं चुका पाया, मैं डिफॉल्टर हो गया। दैट मीन्स एक आदमी पहले आपका कस्टमर, फिर बोरोवर, फिर डिफॉल्टर। जब डिफॉल्टर होने से पहले, जब अगर हम किसी को 10,000 रुपए दे रहे हैं, हम उसके बारे में जानकारी पहले करते हैं कि भैया ये 10,000 का लायक है भी या नहीं है। कभी इसका पहले किसी से लोन लेके किसी को चुकताया या नहीं चुकताया, इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, देने का स्थिति है या नहीं है, ये हमारा काम है। जो मैं किसको 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया दूंगा, तो यहाँ पे जो कस्टमर है पहले से, वो तो कस्टमर बना क्योंकि बैंक से अकाउंट खोला, कस्टमर हो गया। फिर जो लोन लेने पहुंचा, बोरोवर हो गया। तो जब बोरोवर हो गया तो बैंक को उसका पूरा इतिहास जानना चाहिए कि हम जिसको लोन दे रहे हैं वो आदमी सही है या गलत है। इसमें वैल्यूअर्स का दूर दूर तो कोई संपर्क नहीं है। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस बैंक शुड बी ट्रीटेड एज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनपीए। वो भी आगे डिस्कशन करेंगे। मैं खाली आपको माइंड में करा दे रहा हूं, ये वैल्यूअर बोरोवर के बाद पहले बैंक उसे मिला हुआ होता है, उसका अकाउंट कस्टमर के रूप में, ये बोरोवर रूप में जो वैल्यूअर जानता है बैंक ऑफिसर, उसके बाद वो वैल्यूअर को बुला के कहता है भाई इसका प्रॉपर्टी वैल्यू करो। तो वैल्यूएशन से बहुत पहले वो बैंक उसको जाना हुआ होता है, वैल्यूअर नहीं होता है। तो जब बोरोवर लोन लिया, लेने वाला डिफॉल्टर हो गया। डिफॉल्टर भी हम 2 टाइप कैसे करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कोरोना में हुआ, लोगों ने लोन लिया, पैसा नहीं चुका पाया, डिफॉल्टर हो गए, क्यों, मजबूरी थी। तो इसलिए जो डिफॉल्टर होते हैं उसको हम 2 क्लास में करते हैं। इसमें हर वैल्यूअर को इस पे ध्यान देना चाहिए। आफ्टर व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डिफॉल्टर। नंबर 1 इंटेंशनल डिफॉल्टर। इंटेंशनल डिफॉल्टर ये है जो पैदा होते ही सोच रखा था मैं बैंक को तो चूना लगाऊंगा, उसको हम कहते हैं इंटेंशनल डिफॉल्टर। ऐसे आदमी को तो पहले बैंक को सोचना चाहिए कि ये इंटेंशनल डिफॉल्टर, उसको एनालिसिस करना चाहिए, हमारा पार्ट नहीं है। फिर भी हम अपना सेफगार्ड करने के लिए हम भी बोरोवर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को लेना जरूरी है। तो ये डिफॉल्टर क्या होता है, ये बैंक को लोन लाने से पहले बैंक का क्लूज सब समझ लेता है कि बैंक में कैसे लोन होता है, क्या होता है, सीए क्या करता है, वो हर चीज उसको जानकारी है। और पैदा ही सोचता है कि मैं बैंक को चुनाव लगाऊंगा, उसने पहले से सोच रखा था मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा। तो पहला पॉइंट है, बिफोर अप्रोचिंग द बैंक फॉर ए लोन, इंटेंशनल डिफॉल्टर विल गेट द सैलरी रजिस्टर्ड एट हाई वैल्यू एज कंपेयर टू एक्चुअल मार्केट वैल्यू। आप कभी आप सोचे होंगे, बैंक कहता है कि यार भैया वो तो 2 महीने पहले उन्होंने 50 लाख खरीदी, आप वैल्यू 20 लाख कैसे हो गया। तो आपको तभी बैंक को कहना चाहिए भैया वैल्यूअर हमें, तुम नहीं हो। तो हमारे हिसाब से 20 लाख का, अगर 50 लाख खरीद लिया लोन लेने के लिए, उसे 50 लाख खरीदा, उसका 60% लोन लिया, 30 लाख लोन ले लिया, प्रॉपर्टी वाला 20 लाख, तो एनपीए होगा नहीं होगा। तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये क्वेश्चन मार्क सब है। जिम्मेदार कौन है बाद विषय करेंगे, लेकिन हर पॉइंट पे देखिएगा जिम्मेदार कौन है।
ये बोरोर बैंक जानता है, वैल्योर नहीं जानता बोरोर कौन है। नंबर 2, ही इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, इनके जब एनपीए होता है उसको पता रहता है कि मैं तो 60 लाख बैंक से लिया हूं, मेरा प्रॉपर्टी तो 20 लाख है, 60 लाख में 20 लाख भाई क्योंकि हाई वैल्यू कर चुका था, तो इसलिए अगर बैंक बेचेगा तो कितना बेचेगा, 20 लाख तो बेच ही देगा, 40 लाख तो फिर ही मेरा बचा, मैं बैंक मेरा क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। ये पहले से इंटरेस्ट बरोबर सोच रखा था इंटरनल डिफॉल्टर कि भैया हम इसे करनी है। नंबर 3 पॉइंट है इंटेंशनल डिफॉल्टर गेट द प्रॉपर्टी वैल्यू फ्रॉम इज नॉन वैल्यूअर। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। जो बैंक वैल्यूएशन करता है, जो बोरोर लोन लेता है, वो अपना ही वैल्यूअर से बात करता है कि भैया अपने वैल्यू इन द सेंस जो थोड़ी सीधे साधा हो, मतलब ये नहीं कि हर आदमी गलत हो, लेकिन कुछ अनजान भी वैल्यूअर होते हैं, उन्हीं से काम कर उनको लेके दे दिया, इन्फेक्ट कर दिया, उनको जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो खुद अपना वैल्यूअर रिपोर्ट लेके चला गया, बैंक को दे दिया। बैंक को उसी टाइम रोकना चाहिए कि भैया मैंने तुमसे अभी वैल्यूअर के लिए नाम ही नहीं बताई, हमने काम ही नहीं बताई, तुमने किससे दूसरे से वैल्यूएशन कैसे ले लिया। नंबर 4, intentional defaulter submits false document to the bank and also get the same property mortgage with the various banks। देखिए अभी जैसे राजकोट वाला हुआ, राजकोट वैल्यू में क्या सैलरी तो सही है, लेकिन जो अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान हुआ, जो भी बिल्डिंग प्लान लेआउट प्लान हुआ, वो सब गलत है। एक छोटी सी बात समझिए, अगर जहां पे नया डेवलप हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि वैल्यू ने क्या देखा, प्लॉट नंबर 1 2 3 यहाँ हो गए, वहां कैसे हो गया। मान लीजिए जैसे डिमार्केस होता है, बैंक क्या कहता है, हाउसिंग लोन अगला ले रहा है, भाई अगर बाउंड्री, हम जो कहते हैं भाई बाउंड्री बना लो, बैंक कहता है जो 10 लाख रुपए लोन लिया, बाउंड्री 2 लाख खर्च कर देगा तो फिर मकान बनाए क्या। लेकिन जो खाली प्लॉट होती है, होता तो डेवलपमेंट अथॉरिटी की, लेकिन जो खाली प्लॉट होती है वहां होता है स्टोन लगी रहती है, या खरंजा में प्लॉट का नंबर लिखा रहता है। अगर वो स्टोन 2 नंबर पिलर स्टोन उठा कहीं 10 नंबर लगा दिया, वैल्यू क्या देखा, 10 नंबर तो दिखाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, इंटरनल डिफॉल्टर क्या करता है, ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट देता है, उसको फॉर्ज लेआउट प्लान देता है, हर चीज फॉर्ज ही करता है। तो इस पे हम लोग को सबको ध्यान देने जरूरी है कि बोरोर से बात करने से पहले बोरोर से कोई मीठा मीठा बात ही ना करो कभी भी, क्योंकि बोरोर का मतलब पैसा लेना, हमारा मतलब अपने हिसाब से ईमानदारी से काम करना, क्योंकि बोरोर किसी का नहीं होता, ना वैल्यूअर का होता है, ना किसी का बैंक वाला होता है, वो अपना मतलब के राजा रहता है। तो इसलिए हम उसे बिल्कुल 2 कदम आगे होशियार से चलना जरूरी होती है। फिर जैसे हुआ मॉर्गेज ऑन डिमार्केटेड प्रॉपर्टी, और दूसरे बैंक ने प्रॉपर्टी दे दिया, एक प्रॉपर्टी 2-2 3 बार मॉर्गेज कर दिया, तो ये सब चीज नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हर चीज पॉइंट को हम लोग को डिस्कशन करना जरूरी है। फिर इंटर्न बोरोर क्या करता है, डाइवर्सन फंड करता है, सरफेसी कंप्लेंट नहीं होगा। सबसे बड़ी देखिए, एग्रीकल्चर लैंड में 143 कर दिया, और 143 रिक्वायर्ड ओनली बिकॉज टू मॉर्गेज द बैंक, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड बैंक मॉर्गेज नहीं करता, 143 मॉर्गेजेबल है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि लैंड यूज जो लैंड रेट जो है हम भला के लगा देंगे रेसिडेंशियल प्लॉट के हिसाब से। तो ये कभी कभी वैल्यूअर जो है बड़ी घाटा सते हैं, बैंक का भी नुकसान कराते हैं, अपना नुकसान कराते हैं। जब एग्रीकल्चर लैंड को 143 करने के बाद उसका रेट जो है वो लेते हैं डाइवर्सल फंड। तो नेक्स्ट, if banker before sanction the loan will go through the back record of the borrower, then such type of borrower will get no opportunity to bank obtain the loan, and in the process NPA can be reduced to some extent। देखिए जैसे राजकोट में हुआ, राजकोट में बोरोर को वैल्यूअर से मिलाया गया, इसका मतलब बैंक मैनेजर को जानता था बोरोर कौन है, वैल्यूअर को नहीं जानता था। तो ऐसे ही अगर बैंक लोन देने से पहले उसका बैक हिस्ट्री एनालिसिस करें तो ये इंटेंशनल बोरोवर जो है वो कम हो जाएगी। और इंटेंशनल बोरोवर में एक छोटी बात बताऊं, एक प्रॉपर्टी 10 साल पहले थी, तो उसे प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी वो प्रॉपर्टी पार्क हो गया, 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज, तीनों पर पार्क बन गया, ये कानपुर की है। फिर हमने जब बैंक को कहा 10 साल से प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, जब बैंक से क्या बैंक को होश उड़ गया, जब मैंने बोरोवर से कहा, बोरोवर का साहब हमको जानकारी नहीं थी क्योंकि हम प्रॉपर्टी को गए नहीं थे, अगर आपके पास प्लॉट है अगर पार्क बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही वैल्यू का हम प्रॉपर्टी आपको दूसरा दे देंगे। इसको हम इंटेंशनल बोरोवर नहीं कहते, हम इसको नॉन इंटेंशनल बोरोवर कहते हैं। लेकिन इंटेंशनल बोरोवर जानबूझ के नुकसान कराता है बैंक को, जानबूझ के पैसा लेता है। तो इसलिए हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आए, कुछ ना कुछ हमारा इंटेंशन के लिए, हमारा सेफगार्ड के लिए हम बोरोवर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी करें। जैसे मान लो प्रॉपर्टी कहीं आप अपना शहर में है, उसका शहर में आदमी कैसे है क्या नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका फीडबैक हमें मिल जाता है। तो इसलिए जो वैल्यूएशन, ये हमारा जॉब नहीं है निश्चित बात है, लेकिन हम अपना बचत के लिए ये बैंक को जानकारी जरूर लेना चाहिए मतलब बोरोवर के बारे में कि ये बोरोवर है कैसे। अगर सही बोरोवर नहीं है तो कम से हम उसे दूर हट जाए, भैया हमें काम आपका नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, नॉन इंटेंशनल बोरोवर कौन होते हैं? नॉन इंटेंशनल बोरोवर में जिसका इंटेंशन लोन चुकाने का होता है लेकिन मजबूरी वश वो नहीं चुका पाता,
मान लीजिए कोरोना हुआ, कभी मान लीजिए पार्टनर में कोई पार्टनर एक्सपायर कर गया, कभी कभी होता है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री उसका है, कोई उसका लेवी और टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, उसका उसका हमारा इनकम कम हो गया, कभी लेबर स्ट्राइक हो गया, मतलब कुछ ऐसा कुछ है जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में जो एनपीए होती है, जो जो बोरोर से होती है, उसको नॉन इंटेंसिव बोरोर कहते हैं, डिफॉल्टर कहते हैं। तो ये डिफॉल्टर थोड़ी देर के लिए तो डिफॉल्ट होते ही एनपीए होता है, लेकिन जब अपना स्थिति सुधर जाता है और बैंक को पैसा देता है, तो इसलिए इसमें ये कैटेगरी का जो लोग है जो लोन लेते हैं, उसमें हमको खतरा कम है। तो इसलिए हम जो भी रिपोर्ट बनाए, हम ये देखें उसका इंटेंशन कैसा है, जो आराम से आप उसे बातचीत से मालूम 100% पड़ जाएगी कि वो आदमी है कैसे। तो इसलिए हमें जो बोरोर है उसको इंटेंशनल बोरोर से दूर रहना चाहिए, नॉन इंटेंशनल डिफॉल्टर से हमें काम करना, क्योंकि देखा वो तो मजबूरी कभी कोई होता है, कोरोना हो गया तो लोग पैसा इनकम नहीं हो तो नहीं दे पाए। तो इसलिए ये हमारा दोनों टाइप का डिफॉल्टर है। तो इंटेंशनल डिफॉल्टर से हमें ज्यादा केयर लेनी चाहिए ताकि उनसे दूर रहे। नेक्स्ट, हाँ, ये सब रीजन्स है जो इंटेंशनल बोरोवर के बेस है, जो नॉन इंटेंशनल बोरोवर है। सडन डिमिशन ऑफ द बोरोवर हो गया, डिस्प्यूट अमंग द वेरियस पार्टनर्स हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, सब्सटेंशियल वेरिएशन एक्सचेंज ऑफ प्राइस एंड डॉलर सेटा, ये सब एक मजबूरी वशत जो है, जो ड्यू टू सम ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जो बोरोवर बैंक को नहीं चुका होता है, वो उसे हम नॉन इंटेंशनल कहते हैं। अभी सजेशन क्या क्या हम ध्यान दें ताकि हम एनपीए रिड्यूस करा सकते हैं। और ये सजेशन जो है ये बैंक को ही ज्यादातर ध्यान देनी चाहिए। इसे वैल्यूज का कोई ज्यादा मोटो भी नहीं, वैल्यू का मतलब ही नहीं है। थर्ड पार्टी लोन्स टू बी अवॉइडेड। होता क्या है, जब मेरा मकान है, मैं लोन ले रहा हूं, तो मेरे को बैंक को रिपे करने का इंटरेस्ट मेरा रहेगा, लेकिन मैं अपना मकान, दोस्तों का मकान लगा रहा हूं, तो हम क्यों इंटरेस्ट लेंगे? हमारा जो एनपीए हो गया तो हो जाने, तो प्रॉपर्टी तो उसका बेचेगा। तो इसलिए थर्ड पार्टी लोन्स टू बी अवॉइडेड, ये हमको देखनी है। जो हम लोन के दे रहे हैं, हम देख रहे हैं बोरोर कौन है, ओनर कौन है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जो जोड़ी बात है, बोरोर कौन है और ओनर कौन, जहां देखा ये दोनों में डिफरेंस है, वहां पे आप कॉलम थोड़ी सी नीचे कर खिसकना चाहिए कि चलो ठीक है 10 लाख को 8 लाख कर दिया, बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो बोरोर होगा, अगर वो ओनर नहीं होगा, वो इन केस ऑफ एनपीए उसका इंटेंशन कभी नहीं रहेगा बैंक को पैसा चुकाने के लिए। तो इसलिए ये देखना जरूरी है। थर्ड पार्टी लोन जब हो, हम ज्यादा ध्यान से उसका वैल्यूएशन करें, हो सकता है उसको अवॉइड भी कर ले। तो ये अपने अपने सर्कुलर हिसाब से, लेकिन फिर भी कॉलम थोड़ी सी नीचे खिसकना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। लोन्स ऑन प्रॉपर्टीज व्हिच गवर्नमेंट गाइडलाइंस रेट्स आर मोर देन मार्केट रेट्स। कभी कभी ये होता है कि गवर्नमेंट रेट ज्यादा है, मार्केट रेट कम है। उसमें क्या समस्या बनती है? भाई बोरो भी कहता भैया सरकारी रेट तो हमारा 15 लाख है, आपका मार्केट 5 लाख, क्यों कर रहे हो? और उसमें अगर मान लो कुछ थोड़ी ज्यादा दे दिए, तो कल को जो एनपी होगी, प्रॉपर्टी तो बिकेगी गवर्नमेंट रेट पे, तो उतना प्रॉपर्टी बिक नहीं पाएगी। तो जहां पे गवर्नमेंट रेट और मार्केट में ज्यादा जो डिफरेंस है, यू ट्राई टू अवॉइड टू वैल्यू दिट, और यू जस्ट टू लो डाउन द वैल्यू। तो ये हमारे हाथ में। अगर कोई बैंक कहता है इतना वैल्यू, भाई हमारा वैल्यू इतना है, अब अपना हमसे करा ना करना। देखो फीस मिली 3-4 हजार रुपये, हम जिम्मेदारी क्यों 50 लाख ले? नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स इन फेवर ऑफ वीआईपीज। देखिए ये बड़ी दुख की बात है, इंडिया में जितना वीआईपीज है, लोन सबसे एकदम छोटे मोटे लोन तो कम एनपी होते हैं, आप सबके नजर में है, बड़े बड़े लोन ज्यादा है। वो ज्यादा कैसे हुई? क्योंकि वीआईपीज है। वीआईपी का लोन सैंक्शन करता है, बैंक मैनेजर नहीं करता, ना एजीएम डीजीएम करता, वो होता है ऊपर लेवल से। जहां पे ऊपर लेवल खेल होती है, वहां पे बड़े बड़े एनपी होती है। तो इसलिए वो वीआईपीज का प्रॉपर्टी, चाहे वो नेता हो, कुछ भी हो, मंत्री हो, इनका प्रॉपर्टी जो ध्यान देना जरूरी है कि इसका प्रॉपर्टी क्या वैल्यू हो रहा है, क्या नहीं हो रही, क्योंकि ये जो है ऊंची खिलाड़ी होते हैं, ये कभी भी फंसेंगे नहीं। तो इसलिए जो वीआईपी प्रॉपर्टी है, इसे रिलैक्सेशन जो बैंक देती है, हम लोग नहीं देना चाहिए। भाई वीआईपी हो अपने हैं तो नहीं करेंगे। The loan should not be given to structures constructed in neighbor lands. कभी कभी ये होता है डिमार्केट नहीं है, बगल वाली प्रॉपर्टी बना हुआ, हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, जैसे आज हमारा छोटी सी केस हुआ, 15 फुट का फ्रंटेज प्रॉपर्टी थी, उन्होंने 21 फुट बना लिया, बाकी 6 फुट जो बना वो दूसरे का प्रॉपर्टी है, उसका मम्मी की है, लेकिन हमारे तो दूसरी है। तो मैंने जो कहा भाई तुम मम्मी का प्रॉपर्टी हमको दे दो, दोनों प्रॉपर्टी लोन ले लो ना, वो नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे, अगर कल को एनपी होगी तो इसका मम्मी कहेगा मैं तो मेरा हिस्सा है, जाने का रास्ता नहीं, हमें देंगे नहीं तो एनपी हो जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान देखनी है, प्रॉपर्टी का जो लंबाई चौड़ाई, जो डायमेंशन है, ये बड़ी ध्यान से देने जरूरी है। अगर कम है तो आप इंस्टीट्यूट करो, भैया बगल का डॉक्यूमेंट हमको दो, तो जाकर उसको आप फाइनेंस बनाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बड़ा नेक्स्ट, The layout not sanctioned by the competent authority should not be entertained. अभी जो राजकोट वाली केस हुआ, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही केस हुआ।
अगर लेआउट प्लान वो टाउन एरिया ने करके दिया था लेआउट प्लान, अगर वहां का अथॉरिटी किया होता पूरा लेआउट प्लान, और ये लेआउट प्लान अगर देखिए एक्चुअली ये तो थोड़ी सी लंबी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी जहां पे ज्यादा ओपन लैंड पड़ी है कहीं ना कहीं मकान बना होगा, थोड़ी सी मेहनत हमको पड़े, हम उसी मकान का रेफरेंस से हम प्रॉपर्टी पे आइडेंटिफाई करें, ये सबसे बड़ी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी गड़बड़ राजकोट वाले में हुआ, ये गड़बड़ यहीं से हुआ। भाई मैनेजर कहा कि प्लॉट नंबर 2 ये है, अगला ने गया उसका वैल्यूएशन कर दी, ये चेक नहीं करी कि 2 नंबर सही है नहीं गलत। तो इसलिए लेआउट प्लान जो ऑथराइज मतलब एक्चुअली ऑथराइज लेआउट प्लान से अगर कोई बिल्डिंग रेफरेंस अगर नापते हुए पहुंचते हो तो हमको प्लॉट ना मिलता। तो ये छोटी छोटी गलती में बड़ी मेजर हादसा हो जाती है, इस पर हमें बड़ी ध्यान देना जरूरी है कि जो लेआउट प्लान है अगर वो जहाँ पे खाली प्लॉट है वहाँ कोई ना कोई मकान बने, कोई ना कोई रेफरेंस हो, नहीं तो सीधे बैंक बोले चलो भैया आप दिखाओ। तो ये जो लेआउट प्लान सारे आप जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करोगे तो जो कम बने। अभी एक रिसेंटली बात है, ये बैंक ने प्रॉपर्टी फाइनेंस कर दी 18 लाख की, हाउसिंग लोन हो गया 18 लाख हो गया। अब जो प्लॉट पे फाइनेंस है प्लॉट पे बिल्डिंग बनानी है, दिक्कत कहां से हुई, लेकिन वो इंटेंशनल बोरोवर नहीं है, वो नॉन इंटेंशनल बोरोवर है। उसमें बोरोवर का समस्या क्या हुआ, जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनका जो जेई गया वो जो प्लॉट दिखाया उसी प्लॉट में बोरोवर ने बना दिया। अभी समस्या क्या हुआ कि वो जेई ने गलत बना दिया, अभी प्लॉट जो मकान 5 नंबर बनना चाहिए था वो बन गया 15 नंबर पे। अभी बैंक का और डेवलपमेंट अथॉरिटी बात चल रही है कि हमें 15 नंबर 5 नंबर ऑल्टरनेटिव कर दो, ये प्लॉट इसके नंबर रजिस्टर करो, वो प्लॉट नंबर रजिस्टर करो। ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बोरोवर सरकारी नौकरी पे है, अनजान में गलती हुई, इसलिए ज्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ। चांस की बात है उसमें कोई वैल्यूअर ने रिपोर्ट नहीं लगाई और बैंक ने रिपोर्ट लगाई। देखा बैंक भी बोरोवर का फायदा कर सोचने के लिए 2-2.5 हजार फीस नुकसान न बचाने के लिए बैंक खुद अपने इंटरफेयर कर लेता, तो उसे बैंक फंस रहा। अगर कोई वैल्यूअर दिया होता वैल्यूअर को पकड़ लेते, कोई वैल्यूअर उसमें हाथ नहीं लगाया, लेकिन लापरवाही इनसे हुआ। लेकिन वो गलती आपस में एक्सचेंज की बात हो रही है, अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बैंक का बात हो रही है कि भैया जो 5 बना हुआ वो उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दो, 15 नंबर उसको हटा दो। ये अभी बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी अगर वैल्यूअर ने कोई रिपोर्ट लगाया होता उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई शुरू होती। देन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ लोनिंग, देखिए ये पेइंग कैपेसिटी, अगर आदमी पेमेंट करने आपको शायद पता होगा सबको, अभी 5-6 साल पर जितने एनपीए हुए वो एनपीए हुए कि वो रिटर्न फाइल में क्या हुआ, एक पान गुमटी लगा रखा, उसका भी 10 लाख 15 लाख 20 लाख की लोन हो गई, क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका फर्जी रिटर्न फाइल कर दी। तो इसलिए इसको जानकारी बैंक को होना चाहिए ना, हमारे पास तो होगा नहीं, हम प्लॉट देखने गए। तो इसलिए जहां पे देखोगे आप वहीं पे बैंक की जड़ है, तो बैंक को जितने सारी जानकारी बैंक को होना चाहिए, बैंक नहीं करता, उसका जिम्मेदारी माथे पे इनको डालता है भरत। तो इसलिए पेइंग कैपेसिटी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, बैंक को करना चाहिए। देखिए एनक्रोच लैंड पे भी अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को। प्रॉपर्टी नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे में होता है क्या, बन जाता है, फिर वो रोड वाइंडिंग में आता है, वो टूट जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो रोड वाइड टूट जाता है, पैसा रिलीज होता है, वो बोरोवर ने बैंक को बताता भी नहीं कि हमारे से रोड वाइड टूट गया, उसको या कोई हाईवे अथॉरिटी उसको ले रहा, वो भी नहीं बताता है। तो इसलिए जहां पे हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, चाहे कोई भी हाईवे हो, उसे हमको देखना जरूरी है। हम नो ऑब्जेक्शन लेके ले डिपार्टमेंट से कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर आप ले रहे जमीन तो ठीक है, उसका कितना पेमेंट लो उसे हमको बताएं, नहीं तो उसी पे हम फाइनेंस हो जाएगी, वो टूट के चली जाएगी, बैंक के पास जीरो वैल्यू हो जाएगी। द सेंटिमेंटल फैक्टर भी देखनी चाहिए। देखिए एक सेंटिमेंट फैक्टर सबसे बड़ी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई मकान प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं बोरोवर बैंक को, उसे किराएदार मकान है और अपना घर है, तो हमें ये देखना जरूरी है सेंटिमेंट उसको जुड़ा है अपना घर पे, जो मकान किराएदार है उसमें नहीं जुड़ा हुआ। तो इसलिए जहां पे प्रॉपर्टी वो दे रहा हो कि किराएदार प्रॉपर्टी, जहां पे 10-20% किराएदार है, उसको अवॉइड करके हमें उसका घर लेना चाहिए, ताकि घर में क्या उससे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो कभी एनपीए ज्यादातर होगा नहीं। तो इसलिए ये चीज हमको अवॉइड करना चाहिए, जो अपना घर है जहां रहता है उसको देना चाहिए। देखिए एक प्रॉपर्टी 16 भी जो आइटम हम लिखा फोटोग्राफ, एक्चुअली होता क्या है, मैं ये चीजें करीब सालों से लड़ रहा हूं बैंक से कि आप जो डॉक्यूमेंट हमको दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के सामने बोरोवर का फोटो खींच के हमको दीजिए। वो फोटो आप डॉक्यूमेंट रखिए, फिर बैंक वैल्यूअर जाएगा उसको फोटो खींच के आएगा, आप दोनों कंपेयर करिए, दोनों को तालमेल न बैठाओ तो फिर आप उसको जो वैल्यू से भाई कोई प्रॉपर्टी गलत है या बोरोवर से गलत है। ये चीज कोई बैंक आजकल अभी तक कोई इसको लाइन पे लाए नहीं। तो हमने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले से ये पॉइंट जो है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट जो पहला पन्ना है उससे नीचे हम लिख के दे रहे हैं आजकल बैंक को कि भैया आप बोरोवर से फोटो मंगाइए जहां प्रॉपर्टी सामने खड़े होके,
हमारा फोटो भी लगाइए, दोनों फोटो टैली करिए। अगर आप कहीं से डिफर कर रहे हैं, हमारा फोटो बोरो के साथ और जो बोरो ने आपको दिया, दोनों में अगर डिफरेंस कहीं पा रहे हैं तो उसको लोन तुरंत जो कार्रवाई है आप बंद कर लीजिए, हमसे बंद कंसल्ट करिए, फिर लोन दीजिए, उसका बाद हम जिम्मेदार नहीं है। वो आजकल हम उसको हर रिपोर्ट के नीचे जहां पे समराइज स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू होता है, हम उसमें बैंक को रिक्वेस्ट करके लिख रहे हैं, बैंक इज रिक्वेस्टेड टू आस्क द बोरोवर टू प्रोवाइड द फोटोग्राफ्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस and you verify the photograph given by us. If found any differences, then contact us before financing. तो ये चीजें कम से कम ये होगा, चलो ठीक है भाई हमने दिया, हम कल को बैंक नहीं कह सकता भाई आपने गलत प्रॉपर्टी दी, आपने बोरो आज डॉक्यूमेंट दिया, हमारा डॉक्यूमेंट दिया, अगर कहीं डिफरेंस हुआ आप हमको मना कर दिया डिफरेंस है, बस काम का तो लोन ही नहीं हुआ, काम खत्म। आप लोन करो क्यों, 3,000 दो क्यों, अब बैंक जिम्मेदारी दो क्यों? तो इसलिए अपने अपने जिम्मेदारी सभी बैंक को लेनी पड़ेगी, तो जो काम बनेगी, वैल्यू माथे में नहीं जानी चाहिए। उसके बाद सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाई मार्केट वैल्यू लो सर्कुलेट, ये आपको बता चुका हूं। एक और आखिरी पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी एनपीए होती है, 2017 में राजकोट में मान लो फाइनेंस दिया गया, बैंक का गाइडलाइंस में ये है कि जो फील्ड ऑफिसर होगा, बैंक मैनेजर होगा, उसको हर साल जाके अपना फाइनेंस हुई 2018 से उसको नॉर्मल पीरियड जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गया? अगर नहीं गया तो उसका जिम्मेदारी है, वैल्यू को जिम्मेदार नहीं है। वैल्यूअर को 2021 में आप उसे पकड़ रहे हो कि 2017 से 2021 तो 4 साल आप क्या करते रहे? आप अपना प्रॉपर्टी को, जो नियम कहता है कि आप चाहे वैल्यू बैंक मैनेजर हो या फील्ड ऑफिसर हो, दे हैज टू गो टू दिस प्रॉपर्टी, इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी इन ईच एंड एवरी ईयर द प्रॉपर्टी व्हिच इज मॉर्गेज इन द बैंक। तो आपका जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, तो आप उस प्रॉपर्टी को हर साल अपने रिपीटेड इंस्पेक्शन क्यों नहीं करी? उसका जवाब कौन देगा? बैंक मैनेजर देगा, वैल्यूअर नहीं देगा। तो इसलिए जितने सारे देखी जाए, ये सबके सब बैंक की ही जिम्मेदारी है। हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, मैं उसको बताऊंगा, एक दो केस से बताऊंगा जिसमें हमारा वैल्यूअर क्या जिम्मेदारी है। नहीं बताओ, बैंक जो वैल्यूएशन काम करता है, खैर ये भी चीजें हैं अपने वैल्यूअर को देनी चाहिए, लेकिन राजकोट वालों में जो दिया वो अपने वैल्यूअर को दिया, लेकिन अपने बोरोवर को मिला दिया। तो इसलिए ये जितने सारे हैं, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन ईच एंड एवरी ईयर लोन ऑफिसर ऑफ द बैंक शुड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज इन द बैंक टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी इंटैक्ट एंड स्टिल ओन्ड बाय द बोरोवर। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर मैनेजर को, हर फील्ड ऑफिसर को, जो बैंक ऑफिसर जो लोन दिया है, ये हर साल वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करना जरूरी कि प्रॉपर्टी हमारा सही है या नहीं है। अगर आपने 2017 लोन हुआ था तो 2018 में आपको इंस्पेक्शन करके सूद देनी चाहिए थी, और 2021 से क्यों फाइल खोली? और उसके बाद जो है सरफेस कंप्लेंट्स हम वही ध्यान देना जरूरी, जहां पे वो लिख दिया सरफेस कंप्लेंट्स नहीं। जब प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे सेल के टाइम में क्या होते हैं, लोन टाइम क्या होता है। जो सेल करते हैं उसे बहुत सारी दिक्कत होती है। एक तो नंबर 1, जो प्रॉपर्टी हम लोन पे लेते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उस टाइम ओनर वाज द प्रेजेंट, लेकिन जब हम इसको सेल पे जाते हैं, ओनर कैन बी ट्रीटेड एज टेनेंट, क्योंकि ओनर उस टाइम पे आप कोऑपरेट नहीं करता, वो टेनेंट होता है। दूसरी, जो बैंक बार बार कहता है कि जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हुई है लोन के टाइम पे और जो डिस्पर्सन टाइम पे, जो एनपीए टाइम पे डिफरेंस ज्यादा है, उसका वजह क्या? आप 3 साल बाद वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। 3 साल में उसका बिजली बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, 3 साल मकान उसका डिप्रिसिएशन हो गया, उसका नॉर्मल डिप्रिसिएशन और ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये आप टू पैसा कहाँ जाएगा? तो इसलिए जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, अगर हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सही ढंग से किए हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद उसका वैल्यू कम अपने आप हो जाएगी ड्यू टू वेरियस रीजन। क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल का आपका जुड़ा नहीं, हाउस टैक्स जुड़ा नहीं, वाटर टैक्स जुड़ा नहीं, सीओ टैक्स जुड़ा नहीं, मेंटेनेंस देखा नहीं, नॉर्मल मेंटेनेंस, फिर डिप्रेशन फैक्टर लागू करेगी तो वैल्यू तो अपने कम हो ही जाएगी। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, देखिए इसमें ये भी बैंक का ही जिम्मेदारी, बैंक गलती है। बैंक क्या करता, पोजीशन बिना लिए प्रॉपर्टी बेचता आज इज वारिज बेसिस। आज इज वारिज क्यों? आपको जो प्रॉपर्टी आपने लिया है, प्रॉपर्टी आप पोजीशन लीजिए और प्रॉपर्टी दीजिए। अगर हम कहेंगे कि आज इज वारिज, हमने प्रॉपर्टी देखा नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी देखी नहीं, तो आप पहले जो भी बैंक आपका एनपीए होता है उसको पोजीशन लीजिए, तो बरोबर को जो खरीदना है उसको दिखाइए, तो फिर कंपेयर करिए कि पहले जो 60 लाख थी अभी 60 लाख नहीं 50 लाख क्यों हो गया। आप पोजीशन लोगे नहीं, क्यों? अंदर जा ही नहीं सकते हो। आप आज इस बार में करोगे, अगला दूर में बैठ के क्या करेगा? 50 लाख प्रॉपर्टी 20 लाख खरीदेगा नहीं खरीदेगा? तो इसके लिए 101% जो है, जो एनपीए टाइम में जो मकान बेचते हैं, और उससे भी बड़ी खेल है, जो बेचता पता नहीं उसका क्या हाथ है उसके अंदर। आप लोग कभी सोचोगे तो देखोगे कमाई उसमें भी है,
लोन लेने टाइम बैंक कमाने के साथ साथ ये भी कमाई है कि भैया हम 50 का प्रॉपर्टी 20 पे बेचवा दे रहे हैं। आप प्रॉपर्टी बेचवाने टाइम पे आप देखिए पोजीशन लीजिए, फिर अपना सही ढंग से करिए। वो आप नहीं करोगे, आप खाली वैल्यू से जिम्मेदार दोगे। देन जो आपका गवर्नमेंट टैक्स इलेक्ट्रिक बिल ये सब है तो इसलिए वैल्यू आपका कम हो जाती है। तो ये कहना गलत है। अगर वैल्यू ने सही ढंग से वैल्यू लगाई है तो वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम का सिनेरियो कुछ दूसरा है। जो मकान मालिक पहले था अभी वो उसको कैन बी केयर ट्रीटेड एज ए टेनेंट, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करेगा। दूसरा, कोई बने बने मकान में कोई खरीदार इतना ज्यादा आता भी नहीं है। तीसरा, हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, सीओ टैक्स, ये टैक्स का जोड़ के जो आएगा तो भी फैक्टर लोग सोचेंगे भाई हम तो इतना बिजली बिल भी देनी, ये करनी सो करनी, तो वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरी ये है कि जो मकान है 2 नंबर 1 नंबर समस्या सबसे ज्यादा है। तो जो अगर मान लो कोई पब्लिक खरीदता है वो 2-1 दोनों में खरीदता है, और अब जो बैंक बेचेगा तो खाली 1 नंबर बेचेगा। तो ये भी एक फैक्टर बहुत बड़ी है जिसके वजह से हमारा प्रॉपर्टी जो है कम में बिकती है। तो इसके मतलब ये कि वैल्यूर कतई जिम्मेदार नहीं है अगर वो वैल्यूर ने गलत ढंग से रेटिंग लगाया। अगर 10 को 100 लगाया तो वैल्यूर जिम्मेदारी है, लेकिन 10 को 11 लगा तो वैल्यूर कभी जिम्मेदार नहीं है। फिर उसके बाद बहुत सारे लीगल इश्यूज आते हैं, वो इशू भी देखनी जरूरी है। तो ये जितने सारे फैक्टर्स हैं ये सब जो कंसिडर करेंगे, हमें कहीं नहीं लगता कि हमारा वैल्यूर भाई कहीं ना कहीं गलत है। देखिए ये टेबल है, ये हमारा कितना एनपीए कौन सा साल में क्या हुआ था। 2018 से लेकर 2021 तक हमारा 2021 में 6.17 ये ट्रिलियन इंडियन को रुपीज है। तो पहले वो था 8.96, अभी होगा 6.17 2021 में। तो ये तो कम हो रहा, लेकिन कभी ये हमने सोचा कम क्यों हो रहा, इसके पीछे भी कहानी है। अभी मतलब हमने कह रहे गवर्नमेंट क्या करा नहीं करा। अभी आपने अगर पढ़ा हुआ एक बैड बैंक खुला है, बैड बैंक, BAD बैड बैंक। बैड बैंक क्या कर रहा है, जो बैंक की एनपीए अकाउंट है वो बैड बैंक में ट्रांसफर कर दे रहा। मान लीजिए कोई बैंक का 50 करोड़ एनपीए हुआ, वो बैड बैंक क्या कर रहा है, वो 50 करोड़ को खुद खरीद ले रहा, वो भी सरकारी संस्था, वो खरीद ले रहा। तो बैंक का एनपीए अकाउंट कम हो गया, लेकिन घूम फिर के तो बात ये की रहा, जो बैड बैंक है वो बैड बैंक जो एनपीए अकाउंट खरीदता है वो भी तो बेचेगा। तो आफ्टर कुल मिला के हम इधर बैंक को जो एनपीए अकाउंट कम दिखाने के लिए हम उसको बैड बैंक में ट्रांसफर कर दे रहे, फिर बैड बैंक में ट्रांसफर तो वो भी एनपीए बढ़ेगी। तो हम तो ओवरऑल देख लिए नेशनल में कितना आपका एनपीए हो रहा। हम एनपीए अकाउंट को दूसरा कोई मान लो स्टेट बैंक हुआ, कोई बैंक का कोई भी बैंक हुआ, उसी बैंक का एनपीए अकाउंट को हम बैड बैंक में ट्रांसफर कर दे रहे, खरीद रहे कि भैया तुम्हारा 50 करोड़ का एनपीए अकाउंट है, हम 30 करोड़ हमसे ले लो, 50 करोड़ एनपीए दे दो। वो 50 करोड़ एनपीए आप उसको भी बेचोगे तो एनपीए हुआ नहीं हुआ। तो ये कोई समस्या नहीं है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको बैड बैंक करके एनपीए अकाउंट को उस पर ट्रांसफर कर दें, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमें एनपीए कैसे होगी कितना हो, इसका हर पहलू पे हमको देखना जरूरी है। नेक्स्ट, ये एक लास्ट आइटम हमारा है, इसमें हम देखिए कौन रेस्पॉन्सिबल है एनपीए अकाउंट होने के लिए। अभी पहला जो गोला है ये हो रहा ड्यूरिंग सैंक्शन पीरियड है, और जो बाद वाली गोला ड्यूरिंग ऑक्शन है। तो जो सैंक्शन हो गया, पहले बोरोर बैंक जाता है, बैंक में जो ऑफिसर है प्री सैंक्शनिंग ऑफिसर, वो उसका डाटा देखता है, उसका इनकम क्या है, उसका नीचे का उसका हिस्ट्री क्या है, वो सब प्री सैंक्शनिंग ऑफिसर देखता है। यहां तक वैल्यूर कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उनका इनकम का सर्टिफिकेट देता है कि इनका एनुअल इनकम, मंथली इनकम ये है, ये सब उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके देता है। उसके बाद जो है लीगल आता है। प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन होने से पहले बैंक पहले लीगल एडवाइजर देता है, तो लीगल ओपिनियन आता है। मतलब पहले कस्टमर आया बैंक को, कस्टमर किसका, बैंक का, क्योंकि वो कस्टमर है। नंबर 2 प्री सैंक्शनिंग ऑफिसर उसका डाटा लेता है, उसका हिस्ट्री देता है कि भाई कैसे आदमी है, क्या बिजनेस है, क्या है क्या नहीं, वो प्री सैंक्शन से लेता है। फिर उसके बाद अपना सीए को देता है कि भाई इसका जो इनकम देखो क्या है क्या नहीं, वो सीए देता है। फिर जो वो जो संतुष्ट होता है, कौन, बैंक में जो संतुष्ट होता है, तो फिर वो भेजता है लीगल में, तो लीगल एडवाइजर अपना प्रॉपर्टी का लीगल देता है। ये जो 4 काम होता है तो जाके वैल्यूर पर जाता है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होने के लिए। तो ये बताइए वैल्यूर का नंबर कहां पे आया, 5वां नंबर है। हम उसका पहला नंबर कैसे ला सकते हैं, जब वैल्यूर प्रॉपर्टी दिया उसके बाद वो पोस्ट सैंक्शनिंग ऑफिसर के पास गया। अगर आपका वैल्यूर का रिपोर्ट आपको गलत लग रहा है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी कीमत 20 लाख है, वैल्यूर ने 30 लाख कर दिया, तो पोस्ट सैंक्शनिंग ऑफिसर का तो अधिकार है ना, उसको रिजेक्ट कर दें। उसके बाद उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया कंट्रोलर को, कंट्रोलर सेंटर बैठे हुए हैं, उन्होंने वो सभी देखा, कंट्रोलर उन्होंने फाइनेंस कर दिया, लोन सैंक्शन कर दी। मतलब पहले कस्टमर या बोरोर बैंक को आता है, बैंक में बोरोर का जो डिटेल
प्री सैंक्शनिंग ऑफिसर लेता है, पूरा हिस्ट्री जानकारी लेता है वो। भाई सीधी बात है, अगर कोई हमसे पैसा लोन लेने आएगा, भाई हम 10,000 रुपये लो दे, 10,000 रुपये दे दो, 10,000 चाहिए या 1,000 चाहिए, हम तो उसको जानना चाहते हैं ना वो कहाँ रहता है, उसका कितना बच्चे क्या करता है, उसका बच्चे क्या करते हैं, कि उसका कभी किसी से लिया नहीं लिया, किसी को दिया नहीं दिया, ये तो हमारा काम है ना। तो बैंक ऑफिसर जो भी प्री सेक्शन ऑफिसर है उनका जिम्मेदारी यही बनता है कि अगर बोरोन या लोन लेने आया वो करता क्या है, उसका बच्चे कितना है, उसका बच्चे कमाई क्या करते हैं, उसका मकान है या नहीं है, उसका और कहीं से लोन है या नहीं है, ये हर चीज फैक्टर प्री सेक्शन ऑफिसर तो देखता है। उसका देखने बाद भी सीए को देता है, सीए ने के बाद वकील पास जाता है, वकील बाद तो वो जाके वैल्यूर पर आता है कि भैया प्रॉपर्टी है, वैल्यूएशन कर दो। तो वैल्यूर तो लास्ट पार्ट हो गया ना, उसका उन्होंने रिपोर्ट करके पोस्ट सेक्शन ऑफिस दे दिया। अगर आपका वैल्यू में कोई कमी आई पोस्ट सेक्शन ऑफिस को, तो पूरा पूरा राइट है कि भाई ने प्रॉपर्टी आपका वैल्यू हम आपको रिजेक्ट करते हैं, आपका एक्सेप्ट नहीं करते, काम खत्म, वही काम ही खत्म। हमारा अगर गलत है तो ठीक है, सही है तो ठीक है, अगर सही है तो आप फ्रॉड करो, नहीं सही है तो अपना वही रोक दो। कौन मना कर रहा है, हमको जोर थोड़ी कर रहे हैं। ये हो गया लोन के टाइम पे। अभी देखिए विडंबना क्या है, लोन देने वाले कौन हुए, कॉस्ट बोरोर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सभी हो गए लोन देने वाले। जब लोन निपटान या जो एनपीए हुआ, जो लोन को वापस करने वाली बात हुआ, तब कौन कौन है देखिए, क्योंकि वो टीम तो 2 साल बाद 3 साल ट्रांसफर हो गए। आपका दोनों बैंक ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, कंट्रोलर भी ट्रांसफर हो गया, सीए से कोई मतलब नहीं, लीगल ओपिनियन से मतलब नहीं, बोरो तो पैसा खा के बैठा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है। तो कौन कौन सामने आए, नंबर 1 जो है बैंक ऑफिसर, भाई जो एनपीए हो जाता है बैंक ऑफिसर देखता है कैसे उसको बेचे क्या करे। फिर एनफोर्समेंट एजेंट है, वो आया भैया हम तो इसको करेंगे इसको करेंगे, तो उनसे बातें आया। फिर वैल्यूर पास जाता है वैल्यूएशन करने के लिए, जब वैल्यूएशन दिया एडवर्टाइजमेंट एजेंट पाती है, फिर उसका बैंक ऑफिसर फाइनलिटी फाइनेंस करता है इतना, फिर ऑक्शन करता है। इसमें खेल क्या है, वैल्यूर ने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, हम एक छोटी बात बताऊं, ये बहुत साल पहले की है। एक जर्नल हेड ने हमसे कहा कि भैया प्रॉपर्टी चले जाना, उसका एनपीए अकाउंट है, उसे घर न जाना, बाहर से फोटो देखे रिपोर्ट दे देना। तो मैंने कहा इसे कैसे, उसे पता नहीं मकान में कौन रहता क्या करता है। तो फिर हमने उसे घर खड़खड़ाया, वो कुत्ता का शौक, कुत्ता पालता हो। देखिए ये कुत्ता समझ के आप लोग सोचे बहुत हल्का है, आजकल जितने भी ये देखिएगा बड़े बड़े ऑफिसर है, सबके घर में कुत्ता होते हैं। कुत्ता देता कौन है, यही लोग देते हैं। हमसे उन्होंने कहा दास जानते हो मेरे पास जितना डीआईजी आईजी एसपी सब मेरा परिचय की है, क्योंकि सबके यहां तो मैं कुत्ता सप्लाई करता हूं, तो तुमको यहीं से उठा के मैं जेल भेज दूंगा। ये सब था उसका। फिर मैंने कहा भैया ऐसा है, तभी मेरे पास हिम्मत था, मैंने कहा ऐसा है। तभी हमारा उड़ीसा के हमारे पीके महांती साहब कमिश्नर थे, मैंने कहा तुम्हारे पास आईडी जीआईडी हो सकते हो, मेरे पास पीके महांती कमिश्नर है, जरा पूछ लेना पीके महांती की दास साहब मेरे घर आए, मैं उनको धमका रहा हूं। ये दब गया, नहीं तो हम उसी दिन ही, हमको सही कह रहा हूं, उस दिन हमको इधर कर देता। फिर उसके बाद से क्या हुआ, ये जज साहब यहाँ पे सरदार जी थे, यहाँ पे एक बैंक का नाम नहीं लूंगा, करीब 8-10 साल पहले, वो तो कह रहे डिग्रेड हो गए, उनका तो हर आदत थी, हर चीज का आदत थी वो। तो फिर बैंक मैनेजर ने हमसे कहा दास जी ये 6 महीने तो रहना उनको है, आप 6 महीना आप बैंक से काम करना बंद कर दो। हमने 6 महीने ईमानदार से काम करना बंद कर दिया। तो इसीलिए सर्कमस्टेंस चेंज हो जाती है, लोन देने टाइम पे तो होता कौन है और नीलाम क्या होता कौन है। तो इसीलिए जो ऑक्शनर करते हैं, जो एडवर्टाइज निकालते हैं, देखिए ये भी है नियम, ये कि एडवर्टाइजमेंट किसे निकालेंगे, हम नेशनल पेपर निकालेंगे, लेकिन जो एडवर्टाइज निकालते हैं पैसा बचाने के लिए, वो छोटी मोटी अखबार निकाल दिया, पब्लिक जानता भी नहीं है कि पेपर निकल गया, और 2 चलो पड़ गया, उसको क्वेश्चन दे दिया, उसके बस ऑक्शन हो गया। भाई आप अगर कोई 50 लाख 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, ऑक्शन में बेच रहे हो, तो आपको 50-60 हजार तो पेपर में खर्च करना चाहिए ना। जो नेशनल बड़े न्यूज पेपर देना, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया है, कम से कम आसपास के 2-4 स्टेट तो जाने का, वो नहीं करेंगे हम। हमें फॉर्मेलिटी, हमें खाली एडवर्टाइजमेंट देना है, तो जो लोकल पेपर जो जहां जो ज्यादा बिकती ना हो, हम उसी में देखें, वो नेशनल पेपर है, और वो सब पढ़ने वाले देखने वाले काम है। तो जो ग्राहक कम मिलेंगे, भाई हमारा ऑक्शनरी बैठे हुए हैं, भैया लो 50 के है, तुम 20 लो, 1 लो, 100 करो। उसके बाद और एक देखिए खेल क्या, एक केस कानपुर की थी, वहां पे वैल्यूर ने, मैंने बताया ना आपको, बताऊंगा वैल्यूर ने क्या गलती है। उसमें क्या है, 7 फुट का पैसेज थी, लोन हुई 2 बैंक से, हुआ इंडस्ट्रियल लोन। जरा आप समझने वाली बात है, जो वैल्यूर ने किया वो भी समझना चाहिए, जो बैंक ने किया वो भी समझना चाहिए। 7 फुट का पैसेज में आप अगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन नहीं हो तो भी छोड़ो, डॉक्यूमेंट कह रहा है प्रॉपर्टी 7 फुट का रास्ता है, आप लोन किस लिए दे रहे हैं, इंडस्ट्री खोलने के लिए। इंडस्ट्री जब खुलेगी तो वहां तक गाड़ियां जाएगी ना,
गाड़ी का चौड़ाई कम से कम, अगर छोटी छोटी गाड़ी तो ही तो 10-12 फुट रास्ता चाहिए। आपने 7 फुट चौड़ी रास्ता में उसको इंडस्ट्री फाइनेंस पूरी कोई नहीं 10-20-50 लाख उसको दे दी 5 करोड़ लोन ले लिया। फिर एनपीए होने पे हमारे पास आ गया। फिर मैंने मना कर दिया, हम रिपोर्ट बनाएंगे नहीं। फिर चिट्ठिया से आप क्यों नहीं बनाओगे? मैंने कहा हमारा नहीं। अब भाई अगर बैंक ये कहता है कि काम देने का जिम्मेदारी हमारा, हम किसी को काम देना कर दें, अगर हम पैनल में हैं, काम करने का न करने का अधिकार हमारा भी तो है भाई। हमें पसंद नहीं, हम नहीं करेंगे। फिर बोरोर मेरे पास आया। मैंने बोरोर से कहा, मैंने तुम क्यों इतने इंटरेस्ट हो रहे हो भैया इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने के लिए? भाई बैंक ने कहा, बैंक मना कर दिया, तुम क्यों इंटरेस्ट हो रहे हो? बोला दास जी आप समझते नहीं हो, आप जो वैल्यू दोगे कम दोगे, जो भी दे। क्यों 7 फुट, एक तो 7 फुट जो पश्चिम में रोड था वो पश्चिम के मौके पूर्व में था, वो भी दिशा गलत है। मतलब वो तीन, तो उनका कहना था कि भैया अगर कम में प्रॉपर्टी वैल्यू हो गए तो ऑक्शन फेल होगी। तो मैंने कहा तुम्हारे उससे क्या फायदा होगी? फायदा यहीं से शुरू होती है। देखिए ये चीज हम लोग समझते नहीं है। बोले साहब फायदा ही फायदा उसमें। मैंने 4 करोड़ का लोन लिया, एनपीए हो गया, ऑक्शन फेल हो गया, अभी मैं हो गया ऊपर। बैंक से होगा भैया हम 4 करोड़ तो नहीं दे पाए, 2 करोड़ देंगे। उसे हम बैंक मैनेजर भी समझ लेंगे, हम भी समझ लेंगे। 4 करोड़ प्रॉपर्टी हम 2 करोड़ में कंप्रेज ले लेंगे। फिर मैंने पूछा तुम इसको करोगे क्या? बोला साहब प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करके बेचेंगे, हम कम से कम 10 करोड़ का कमाएंगे। आप समझ लीजिए 4 करोड़ बैंक से लिया, मतलब उसका एनपीए आउटस्टैंडिंग 4 करोड़ है, 2 करोड़ में कंप्रेज करेगा और उसको 10 करोड़ में बेचेगा। तो इसमें कौन जिम्मेदारी बताइए? अगर हम 2 करोड़ प्रॉपर्टी है तो बैंक को ये नहीं देखनी चाहिए कि भैया उसका क्या सोच है, क्या सोच रही है बैंक वालों को, ये सोच नहीं पता। मैं तो क्योंकि पूछा इसलिए उन्होंने बता दिया, इसका जानकारी हम तब तक था भी नहीं कि सारा इतना यहाँ खेल होता है। 4 करोड़ का पे तो 2 करोड़ कंप्रेस करो, 10 करोड़ पहुंचे तो 8 करोड़ फायदा हो गया। तो एनपीए कराने में चाहे कोई भी हो, चाहे वैल्यूअर हो, ये हो, जो कितना फायदा आपको सोचिए। बैंक का नुकसान है लेकिन बैंक का अधिकारी का नुकसान नहीं है, ना लोन लेने वाला नुकसान है। अगर ये सही है, और सही भी है उसका, क्योंकि कई बीघा जमीन है, कई बीघा जमीन को 2 करोड़ कंप्रेस करके 10 करोड़ बेच देगा, प्लॉटिंग कर बेच देगा, क्योंकि कानपुर आउटस्कर्ट है, प्लॉटिंग हो ही रही है, प्लॉटिंग बेच देगा। तो ये खेल है। तो इसलिए ये ना सोचे कि अगर वैल्यूअर ने कोई कम दिया, भाई वैल्यूअर इसमें गलती थी 7 फुट के रोड पे, और चौहदी में भी गलत डॉक्यूमेंट के हिसाब से चौहदी नहीं मैच कर रही थी, फिर भी 7 फुट जो चौड़ी रोड पे आप इंडस्ट्रियल लोन कैसे दे दिए? ये सवाल बैंक के ऊपर लगता है और वैल्यू को लगता है। बैंक को भी समझना चाहिए 7 फुट रोड पे जो गाड़ियां नहीं जा सकती है, हम इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम उसको लोन कैसे दे रहे हैं? तो क्या इससे बैंक जिम्मेदारी नहीं है? हर चीज बैंक वैल्यूअर के खिलाफ क्यों? तो इसलिए ये है कि हमें बिल्कुल ये निश्चित रहना चाहिए, मतलब हम काम ईमानदार से करें, हम एथिक्स से करें। लेकिन कभी कभी हम भी फंस जाते हैं, वैल्यूअर भी फंस जाता है। तो इसमें गलती बैंक को, वैल्यूअर को इतना नहीं है जितना गलती बैंक को है। बैंक अगर ईमानदारी से बैंक को बिजनेस बढ़ाने के लिए काम करे, और ये भी परसेंटेज कितना 5-10% प्रोफेसर ऑफिसर ऐसा है जो इसे गड़बड़ करते हैं। तो इसीलिए ये है कि हम लोग इस ऑफिसर को भी क्या ध्यान देना चाहिए कि ऑफिसर कैसे, हम अभी से कानपुर में ऐसे ही है, कुछ ऑफिसर को खराब लगता है, चलो हम उनसे काम नहीं करते। तो इसलिए ये हर चीज हमको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में, हमारा क्या। देखिए राजकोट में वो जो हुआ वो तो स्टेट बैंक का पैनल में डिपेंड हुआ, उसके साथ साथ बाकी पैनल में भी डिपेंड हो गया, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा भाई बंधु है। अगर अगला ने राजकोट में परेशानी झेल रहा है तो वहीं का दोस्त उन्होंने बैंक को चिट्ठी लिख दी कि ये तो डिपेंडल हो गया वहां पे। तो ये भी ना करिए, मतलब अगर कोई गलत से फंस भी गया उसको हम सपोर्ट करने बजाय उसको डिप्लॉय ना करें। भाई काम अपना जो कुछ दूसरा काम करो, लेकिन बाकी बैंकों के तो हम कम से कम उसको ना हटाए। तो हमारा सोच भी सुधरनी चाहिए। हम एक परिवार का आदमी है, अगर एक कोई दिक्कत है तो हम उसको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, और हम अपनी ईमानदारी से काम करें, ताकि हमें कोई प्रॉपर्टी एनपीए ना हो। जहां पे हमको समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी सही नहीं है, गलत नहीं है, उसे हम दूर हाथ नमस्ते कर दें। क्योंकि हमें कोई जरूर नहीं कि कोई प्रॉपर्टी बैंक दे रहा है उसको वैल्यूएशन नहीं करें। हम इतना हमारे पास गढ़ होना चाहिए कि नहीं भैया हम प्रॉपर्टी आपका ये वैल्यूएशन पार्ट में भी है जो आपको मैंने बताया। तो आपसे बस यही निवेदन है कि हम सब इन्हें ऑनेस्टली काम करें। हमारा देश है, हमारा बैंक है, देश के विकास के लिए बैंक का विकास जरूरी है। बैंक विकास के लिए हम ईमानदारी से, मेहनत से काम करना जरूरी है। अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो देश बढ़ेगा, हम बढ़ेगा, 2 रोटी हम भी कमा लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्ते। आपने पेशेंस से सुना, अगर कुछ पूछना है तो बताइए। ने आपका जो इशू किया है
तो सर बैड बैंक क्या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज पर सॉल्वेंसी एक्ट है क्या नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी जो बैड बैंक गवर्नमेंट ने शुरू करी है वो एनपीए कम करने के लिए करी है। उनका एक सोच है, मतलब सोच रहे हैं कि हम एनपीए कम हो जाएंगे। तो जो मान लीजिए स्टेट बैंक के पास, मान लीजिए अब डाटा मेरे पास अभी है नहीं, स्टेट बैंक मान लीजिए 100 करोड़ रुपया एनपीए हो गया, वो 100 करोड़ रुपया बैंक बैड बैंक खरीद लेगा कि 100 करोड़ का एनपीए को हमें 80 करोड़ 70 करोड़ दे दो। फिर बैड बैंक क्योंकि थोड़ी सेंट्रलाइज बॉडी हो जाएगी, वो उसको प्रॉपर्टी को, मतलब जो प्रॉपर्टी 100 करोड़ पे एनपीए है वो प्रॉपर्टी बैड बैंक ले लेगा, उसी प्रॉपर्टी को फिर वो बैड बैंक बेचेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? एज पर सॉल्वेंसी है ये तो नहीं, प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज है तो सरफेस एक्ट पे है ही है। वो प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए कोई बैंक से और जोनल ऑफिस या कहीं ट्रांसफर होती है, वो उसी बैंक से पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर बैड बैंक चला जाएगा। बैड बैंक भी गवर्नमेंट का ही बैंक है, उसका नाम बैड बैंक दी गई है कि जितना एनपी अकाउंट तो बैड अकाउंट है वो उधर ट्रांसफर होगी। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट बैंकों में है वो प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी। इसका गवर्निंग बॉडी थोड़ी सुपर लेवल की है, तो इसलिए उसी ढंग से मैनेज करके, देखिए गवर्नमेंट का सोच बहुत अच्छी है। अभी स्टेट बैंक का सीएमडी का मतलब एक रिप्लाई आया था, उसमें स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी इसको बड़ी तारीफ करा कि हाँ गवर्नमेंट का अच्छा पहल है, कम से कम एनपी अकाउंट को बचाने के लिए, कम करने के लिए अच्छा मदद। क्योंकि होता क्या है, जो बैंक में एनपी होती है उसको काम करने बहुत सारे होते हैं, जब ये लिमिटेड लोगों पर चला जाएगा, उसको जिम्मेदारी बन जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सुधार जरूर आएगी। जो एनपी अकाउंट 100 करोड़ थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और उसका अच्छा रिजल्ट तो निकल ही रहा। उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा नहीं होगा। सिक्योरिटी रिसीट जी तो जो प्रॉपर्टी एमपी हो गया, हाँ। वो सिक्योरिटी रिसीट एआरसी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए एक्चुअली होता है क्या, मान लीजिए हम एक बैंक, मान लो मैं कोई बैंक हूँ, मेरा पास 50 लाख की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी एनपी हो गया। अब मिस्टर एक्स मान लो भी दूसरा बैंक में, उन्होंने कहा साहब 50 लाख की 50 करोड़ प्रॉपर्टी आप बेच नहीं पा रहे हो, एनपी हो रही, आप हमको 50 करोड़ प्रॉपर्टी हमको दे दो, हम बदले में आपको 30 करोड़ देते रहे। तो जो बेचेगा 20 करोड़ को फायदा, क्योंकि ये बेच ही नहीं पा रहा, मतलब ये उसी बड़ी बड़ी अकाउंट तो भी ट्रांसफर हो रहे हैं जहां पे बैंक ये प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहा। तो जो बैंक नहीं बेच पा रहा वो सबके सब प्रॉपर्टी को धीरे धीरे बैड बैंक में ट्रांसफर हो रही है। और जो ट्रांसफर हो जाए बैड बैंक का क्या फायदा, उसमें बैड बैंक फायदा ये है कि जो चीज आपको 10 की प्रॉपर्टी आप बेच नहीं पा रहे, बैड बैंक उसको 8 में या 7 में ले लिया, 3 उसका फायदा हो गया। तो ये सोच है गवर्नमेंट की। जो बैंक उसको एनपीए कम नहीं करा पा रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहा, ये उसी केस में लागू है। अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई है। मैंने सॉल्वेंसी एक्ट में पढ़ा है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको करते हैं, इसमें सब देखिए जो प्रॉपर्टी आपका बैंक में मॉर्गेज हो तो सरफेसी के एक्ट के तहत मॉर्गेज है ना, सेम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, आपको थोड़ी हो रही है भाई। जैसे टेक ओवर हो रही है, आप मतलब कोई मिस्टर बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं बैंक जा रहा, तो टेक ओवर जैसे जो फॉर्मेट टेक ओवर हो रही है दूसरे बैंक है, ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, हर चीज ट्रांसफर हो रही है। खाली है कि जो बैंक स्टेट बैंक था वो बैड बैंक चला गया और उसका मालिक बैड बैंक बन गया, बैड बैंक उसको नीलाम करेगा, हर चीज वो नीलाम करेगा। उसमें क्या होगी, फायदा क्या होगी, जब देखिए एक्चुअली देश बहुत बड़ा, बैंक बहुत बड़ा है, स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए लिमिटेड होना चाहिए। हम अपने स्टाफ, अपने ऑफिस में भी 7-8 लोग स्टाफ है, तो भी हम कंट्रोल कभी कभी कर नहीं पाते। तो जहां पे इतना हजारों की संख्या में ऑफिसर है, तो हम नहीं कह रहे कि अथॉरिटी गलत है, कोई बैंक गलत नहीं है, लेकिन उसका जो ऑफिसर्स है, कुछ ऑफिसर्स परसेंटेज ऐसा है 5-10 जो गलत करते ही करते हैं। तो उसमें यहां तक कि जो बैंक का टॉप लेवल है उनको जानकारी भी नहीं होती। तो इसलिए जहां पे नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन कम हो जाएंगे, वहां पे निश्चित बात पे ये एनपीए का अकाउंट कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये आपका बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी सिस्टम है वो अच्छी है, देखते हैं कहां तक सक्सेस हो पा रहा, लेकिन उम्मीद है कि सक्सेस जरूर होगा, क्योंकि वहां पे हाई लेवल का आदमी है और कम लिमिटेड लोग हैं, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में कोई डिसीजन मेकिंग भी होगी और उतना गलत नहीं होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका फायदा होगी, एनपीए अकाउंट कम होगा। और एनपीए अकाउंट कम होगा, देखिए इंडेमिनिटी बॉन्ड, जितने बॉन्ड है वो किसलिए शुरू हुई, मतलब बैंक अपने स्टाफ कुछ गले फंसेगा नहीं, तो इसलिए जो एनपीए बढ़ने के चक्कर में इंडियन बढ़ी। उसके लिए भी गलती हमारा ही है कि एक आदमी यहां बैठ के 15 किलोमीटर दूर में वैल्यूएशन कर रहा, तो ये गलती हमारा भी है और बैंक का पॉलिसी भी है, ताकि दूर का जो जहां पे वहीं पे वैल्यूएशन करना चाहिए। हम आगे ज्यादा लालच हम भी तो रख रहे हैं, तो ये नहीं कि वैल्यू गलत नहीं है, हमें जहां जितने काम कर पाए उतना काम करें, हम क्यों जाए 200-2000 किलोमीटर दूर में जाकर काम करने के लिए। तो इसलिए अच्छा पहले बैड बैंक का सिस्टम बहुत अच्छा शुरू हुई है। देखिए भगवान ने कहा तो अच्छा होगा, तो कम से देश का तरक्की हो जाएगी। तो सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, एआरसी क्या है और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, आप बताइए। आप बताइए, हमें तो जानकारी। कोई बैड बैंक, तो बैड बैंक तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो वो भी एज पर सॉल्वेंसी एक्ट।
और सर करा कि आप बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ना ना ना, सुनिए, आप बोलने से पहले हम आपको बोले। अभी राम कुमार जी सर हमारा जो है इमीडिएट पास्ट चेयरमैन है। इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हमारा चेयरमैन साहब वो सुपर इंजीनियर है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, वो कोई काम में फंस गए, तो इसीलिए हुआ कि जो एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट से प्रिंसिपल ही है कि जो जब चेयरमैन एब्सेंट रहते हैं तो इमीडिएट पास्ट चेयरमैन उसको चेयर करते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचा क्यों जो हमारा चेयरमैन नहीं है तो इमीडिएट पास्ट चेयरमैन क्यों एक्शन नहीं करें। तो राम कुमार जी हमारा IIT में प्रोफेसर है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। और जो कोरोना पीरियड में क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट निकाली, वही बताएंगे। क्योंकि मैं तो पेपर में पढ़ता रहता हूँ, ज्यादा वही बताएंगे। तो हमारा आश्वासन के बारे में कुछ बताएंगे तो भी खुश होंगे। और आपने क्या क्या मेहनत करके क्या क्या हम देश को दे रहे हैं ये भी आप बताइए अपने मुंह से। जय राम कुमार जी प्लीज। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग इतना यू हेल्प लॉट ऑफ इवैल्यूएशन करके दे एंड यू आल्सो अपडेट एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ। अभी एक हमारा होम टाउन में एक मंदिर है, वो मंदिर का पुराना है, वो 200 इयर्स पुराना है। आज का कॉस्टिंग कितना है, कैन बी प्लेज, व्हाट विल बी द लोन। सो ये सारा चीज वैल्यू इंजीनियर के हाथ में है। You have done a wonderful presentation. हम बहुत खुश हैं, it was so knowledgeable. So सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद and दास जी you have done a fabulous job. सर लेकिन in future हर महीने एक ऑफलाइन इवेंट करिए, सब वैल्यू इंजीनियर्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स को बुलाइए, उधर आप बैठ के चर्चा करिए, कुछ नया चीज निकालिए। So you please start using the platform of Institute of Engineers and let us take it to the next level. अभी थोड़ा थोड़ा वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स फिसल आउट हो रहा है। आप लोग आएंगे, आप लोग थोड़ा ले लेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस विल बी वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद दास जी, आप वेरी नॉलेजेबल टॉक थे एंड थैंक्स टू ऑल द वैल्यू इंजीनियर्स हु पार्टिसिपेटेड, हु मेड दिस शो ग्रैंड सक्सेस। And Kanpur Local Center will be very happy to collaborate and do many events with Value Engineering Association. And this is full of knowledge. And आप लोग करना है, IIT में करना है, बोलिए IIT में हम अरेंज करेंगे, नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में करना है उधर भी करेंगे। अब ये जो नॉलेज है आप लोग के पास, that has to be transferred to diploma students and engineering, civil engineering students. आजकल सिविल इंजीनियर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या क्या पोटेंट है एंड व्हाट दे कैन एक्सेल। सो ये आप लोग थोड़ा आगे आइए, हम लोग पूरा मेहनत करेंगे। लेट अस ट्राई टू गिव सिविल इंजीनियरिंग अ न्यू आउटलुक एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। ओवर टू दास जी। सर नहीं, नॉट ओवर टू मी, मैं आपसे बता दूं, हम इंजीनियर्स का मदद लेके, मैं भी सेक्रेटरी था। तो अभी जो 17 जून को हम AGM कर रहे हैं, हम कानपुर लोकल सेंटर में कर रहे हैं। और जो नेशनल सेमिनार है हमने ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट किया कि अगर कहाँ कहाँ अपने शहर में करेंगे, तो अगर बाय चांस दूसरे शहर में नहीं ऑर्गेनाइज हो पाती है तो हम कानपुर में करेंगे। और दैट मीन IIT कानपुर। और IIT कानपुर वाली जो बात होती है, हमारे 2 दोस्त हैं। एक ना सर सुनिए, एक तो आप हमारे दोस्त हैं, तो आपसे हम जरूर कहेंगे कि हमारे जो गेस्ट बाहर से आएंगे उनके लिए आप गेस्ट हाउस में रूम भी आप बुक कराएंगे, सभी करेंगे, तो भी आपका जिम्मेदार, तो भी आपको डिस्टर्ब जरूर करूंगा। और आपको जाने से पहले, आपका विदाई लेने से पहले हमारा जितना मेंबर है वो जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या, क्योंकि मैं खुद गया था एक बार आपको देखने के लिए, कोरोना पीरियड में आपने मतलब भारत सरकार और भारत लोगों को बहुत सारा दिया, तो क्या क्या दिया, कुछ 1-2 एग्जाम्पल तो बताइए। नहीं सर, एक हम लोग जिस समय पे बहुत दिखता है तो मास्क, सो हम लोग उसी समय मास्क शुरू किया। पूरा देश में नहीं था, हम लोग 40,000 मास्क, हम और एक स्टार्टअप स्वासा के साथ कुछ करके डाई बना के शुरू किया। अच्छा हिट हो गया। उसी समय अयोध्या में इनॉग्रल फंक्शन डे प्राइम मिनिस्टर हमारा मास्क यूज किया, वो एक डेवलप किया। दूसरा है उसी कोरोना का पीरियड में काफी सारा स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थे, सो उस समय हम लोग एक छोटी सी डिवाइस डेवलप किया, मोबाइल मास्टर जी। सो वो स्लेट के ऊपर एक थोड़ा सा एक्सटेंशन ये दिया, स्टैंड दिया, उसमें आप मोबाइल फोन रख के आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वो एक डेवलप किया। तीसरा है फेस मास्क, हम लोग इंडिजिनसली डेवलप किया, बहुत हिट हो गया, इंडिगो फ्लाइट में भी वो यूज हो गया उस समय। सो ये तीसरा था। अब छोटे छोटे चीज काफी डेवलप किया।
बट फिर भी आप लोग का ब्लेसिंग है, आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का मॉरल विशेष है, सो ये लेके हम कर रहे हैं। बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू कानपुर, ये हमारा होम टाउन भी नहीं है। हम भी दास का सेम स्टैंड है। दास जी उड़ीसा से है, हम तमिलनाडु से है। इनफैक्ट द वैल्यू इंजीनियरिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट कनका सभापति इज माई क्लोज फ्रेंड। वो हमारा होम टाउन का ही है, त्रिची का ही है। सो वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, मेंटर है। सो वो जानते हो। सो हम भी इधर आया कानपुर आके सब लोग का सपोर्ट लेके हम भी बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हम बहुत कम किया, और करना है आप लोग के साथ, और अच्छा करना है। इज देयर एनी डिजिटल टूल डेवलप करना है, नहीं है तो टेस्टिंग टूल डेवलप करना है। हम लोग IIT में काफी सारा फैसिलिटी रखा है, आप लोग के साथ जोड़ के डेवलप कर सकते हैं। हम ओपन है, इसी समय सपोर्ट चाहिए, आइए, हम IIT में ही सब कर देंगे। तो और कुछ नहीं है। हम छोटे आदमी है, दास जी ऐसे नहीं है बाबा, छोटे आदमी है। दास जी ने अच्छा काम करते हैं, एक मंदिर भी किया। तो हम छोटे आदमी है बस। बट आप लोग के ये कुछ सेवा के लिए है तो बताइए, किसी समय कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करना तो भूल जाइए, हम कर देंगे, पूरा IIT में कर देंगे। आप लोग आइए, नॉलेज ले लीजिए, जाइए, हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। वो तो आप टारगेट में है ही, आपको डिस्टर्ब करूंगा ही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय हो गया, सब लोगों को बहुत धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, अभी चेयरमैन साहब आस्थाना जी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोग से मिलने के लिए। आगे एक कार्यक्रम करिए ऑफलाइन, सब लोग मिलेंगे, मिलजुल के कुछ कार्यक्रम सोचेंगे भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। one member from IWA called me just yesterday and asked me for the zonal office phone number. देखिए, इंडेमिनिटी इशू में हमने आपसे क्लियर किया है कि हम आईवा ने स्टे राजी हो गया। अभी भोपाल से चिट्ठी आई थी, तो हमने अभी क्या नाम लखनऊ को भी मैं लीगल नोटिस इशू करी है, और भोपाल से भी चिट्ठी आया था कि भोपाल वालों भी मांग रहे थे, तो उनको नोटिस इशू करी है। अभी एक मेंबर कलकत्ता से है, वो है यूपी का, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि कलकत्ता भी मांग रहा, वेस्ट बंगाल। तो मेरा कहना है कि जहां भी मांगे, आप हमको हमारे पास प्रूफ चाहिए। मतलब आप कह रहे कलकत्ता मांग रहा, हमें कैसे मालूम मांग रहा? तो आप हमारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म यूज करिए, हमको आईवा मेल करिए। सर जी, आप हमको मेल करिए कि आपका कलकत्ता मांग रहा है। हमारे पास अपना कंसल्टेंट तौर पे हमारा लीगल एडवाइजर है, परमानेंट है, एक RTI कंसल्टेंट परमानेंट है। तो इसलिए आप कहीं पे किसी से पीछे RTI मांगना हो, आप हम बताइए, आपको एक पैसा खर्च नहीं होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और कोई लीगल में चाहिए तो भी हम बताइए। तो हमारा दोनों कंसल्टेंट हमारा परमानेंट है, तो हम लोग को सेवा करने के लिए है। तो इसलिए अगर आपका कलकत्ता ही मांग रही है, हमें परसों मालूम पड़ा था कि आपको कलकत्ता मांगी जा रही है, लेकिन इसको क्योंकि आश्वासन तरह से कोई लेटर अगर जाएगा, कम से कम कल को वो झूठा हो सकता है। तो इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी, हमारा मेंबर अगर चिट्ठी रिक्वेस्ट करे कि साहब कलकत्ता मांगी जा रही है, आप इनको लीगल नोटिस करिए, आज भेजिए, मंडे को हम आपको लीगल नोटिस भेज देंगे मेल पे, और हार्ड कोई बच जाएगा। अभी भोपाल को हमने सेम डे परसों हमने भेजी लीगल नोटिस, और कल हमारा रजिस्टर पोस्ट में डिलीवरी हो गई। तो इसलिए हम बिल्कुल देखिए, हम वेल्लोर के हित के लिए जितना हम हो पाए हम पूरा काम करने तैयार है, पर सपोर्ट आपका चाहिए। ऑफिशियल इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप में कहने पे नहीं होगी। अगर कोई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई चिट्ठी लेके दे रहा है तो इज्जत वाली बात है। कल को और झूठा हो जाएगा कि नहीं हमने मांगा ही नहीं, आपने चिट्ठी लिखा, तो गलत हो जाएगी। मतलब इज्जत वाली सवाल है। तो इसलिए कहीं पे आपका किसी भी तौर पर गलत हो, मतलब कहीं जिम्मेदारी जरूरत पड़े, तो आप हमको अवश्य मेल पे जरूर सूचना दीजिए, उसका कार्रवाई हम तुरंत करेंगे। और सर ना व्हाट्सएप ना करिए, मेल पे करें। देखिए, हम उसको रिकॉर्ड रखेंगे। देखिए, हम आपको ये मान के चलिए, हम आपको वादा दिलाते हैं, जो लेटर आप भेजेंगे हम आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किसने भेजा। ये 101% गारंटी। देखो, आप लोग हमारे जानते नहीं हो, जो कानपुर वाले हम जानते हैं, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो इसलिए आप लोग को अगर मन में डर हो कि मैं अगर लेटर मेल करूँ, ऐसा ना कि मेरा नाम एक्सपोज हो जाए, आपका नाम कतई एक्सपोज नहीं होगी। मैं एक्सपोजर हो ही चुका हूँ, मैं PNB के नजर में गिर चुका हूँ, तो हमें गिरने दीजिए, काम खत्म। बाकी आप लोग कोई ना गिरो, लेकिन हमारे प्रूफ चाहिए कि हमने आपने भेजा। आपका नाम कतई किसी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका नाम एक्सपोज नहीं करी जाएगी। मैं आप सबके सामने 101% वादा करता हूँ। उसका सर नाम है दिनेश कुमार शर्मा, सूर्या के घर।
हाँ ठीक है, आप मेल पे भेज दीजिए, मैं तुरंत आप जिस दिन मेल करेंगे दूसरा दिन आपका नोटिस इशू हो जाएगी। अभी आपको भेजेंगे। हाँ अभी करें, कल तो संडे है ना, अभी मंडे को भेजेंगे। और यूनियन बैंक ने भी कुछ जगह पे मांग रही थी, लखनऊ भी हम लोग शेयर करी, कुछ बनारस वाला कह रहा था नहीं मांग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, लखनऊ में मांगा था तो लखनऊ भी हम लोग रिप्रेजेंट किया था। जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रही है, हमें 2-4 केस चल रहे हैं उसमें, स्टेट बैंक सभी बैंक के खिलाफ, एज के खिलाफ और फीस स्ट्रक्चर के खिलाफ भी। तो ये भी हम परसों मैंने लोकल से बात भी किया था, वो मौका देके वो भी केस शुरू हो जाएगी। तो वहां पे जो यूनियन बैंक का जो एडवोकेट ने, उन्होंने बिल्कुल जजमेंट कोर्ट के सामने पेश किया कि हम जो है यूनियन बैंक हम इंडिमिनिटी नहीं मांग रहा। तो इसलिए वो जो लीगल पर जितना हमारा हुआ, जो हमारा आश्वासन तरफ से हुआ, वो आपको सबको जानकारी है। जो भी हम लेटर मेल भी करते हैं, हर एक मेल आप सबको इंडिविजुअल मेल पे ही पहुंचती है, ताकि कोई भी मेंबर हमारा ना कहे कि हमें जानकारी नहीं मिली। बस उतना खाली उम्मीद हम करते हैं। हमारे पास कल के तारीख तक 334 मेंबर हो गए, तो हम उम्मीद करते हैं कम से कम 50% मेंबर तो हमारा अटेंडेंस रहे। जो हमारा महीना फिक्स है, हर महीने का सेकंड सैटरडे फिक्स है, समय फिक्स है, हमारा जो क्या नाम लिंक भी फिक्स है। तो क्यों हमारा इतना तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि हमारे पास गैदरिंग अच्छा हो। क्यों बर्मा सर बताइए, आप तो बुजुर्ग हमारा, बताइए, आप बताइए, मैं कुछ गलत उम्मीद करता हूँ? और कुछ तो मेरे ख्याल में और कहीं कोई डिस्कशन है मेरी नहीं। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही सर, आ रही मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। सर मैं आपको भेज सकता हूँ, भगत साहब से कंपेयर नहीं करेंगे मुझे? अरे सर भगत साहब तो भगत साहब तो बोले तो भगत साहब बोलेंगे, तो भगत साहब बोलिए। आप लोग सर सब लोग हमारा बड़े हैं, तो आपको डांट खाने से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दिनेश जैन साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरे विचार में जो एनपीए है वो खाली वैल्यूअर से रिलेटेड होना ही चाहिए। बेसिकली एनपीए क्रिएशन जो है ना, वो बारोर की इनेबिलिटी है तो सर्विस द लोन, ठीक है। उसके कई कारण हो सकते हैं। वो कारण वैल्यूअर का छोटा सा पार्ट है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने का। आपको सब जानते हैं हमारे देश में इतने सारे उद्योग लगे हुए हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, और ऐसा कोई उद्योगपति आप सोच के बताइए, 5% उद्योगपति ऐसे नहीं बता पाएंगे जिन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया हुआ उद्योग लगाने के। 5% भी नहीं मिलेंगे आपको। 95% ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के पैसे से उद्योग लगाए। लेकिन होता क्या है, इंटेंशन होती है, कौन देना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता। 14 मई 19 मई 2014 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मई जून में बने थे पहली बार, तो मई 14 में हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति जो आपके फोर्ब्स लिस्ट में आते हैं, मतलब जो वर्ल्ड के टॉप बिलियनर है, उनके खिलाफ ईडी ने कंप्लेंट फाइल की थी कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का जो प्लांट आते थे, उन्होंने 9,880 करोड़ में इम्पोर्ट किए। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जांपल है। क्योंकि आप जानते हैं मैं यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहा हूँ और उसके बाद में बैंकों से कईयों से एसोसिएट रहा हूँ, और हमारे प्रोफेसर साहब जो बता रहे थे ARC, मैं आज भी सभी ARC का काम करता हूँ, मोस्ट ऑफ ARC का काम करता हूँ, RC को छोड़ के। तो बेसिकली मैं जब देखता हूँ उनके खाते और जो उनके लोन, मेरा काम एनपीए का वैल्यूएशन ही है, लोन देने का वैल्यूएशन मेरा नहीं है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि ज्यादातर जो खराब हुए अकाउंट वो बारोर के इंटेंशन से हुए हैं या बैंकर्स के इंटेंशन से हुए हैं। मतलब आप जो मानेंगे, आपको 2% 5% केस मिलेंगे जिसमें वैल्यूअर की जिम्मेदारी है। 95% एनपीए दे आर क्रिएटेड बाय द बैंकर्स देमसेल्व्स ड्यू टू कई चीजें हैं। ड्यू टू उनके, आप ये कह सकते हो कि उनकी लीगल की कमी। लीगल कमी क्या है कि उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं किया, वो शेयर प्रॉपर्टी पे लोन दे दिया, ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन दे दिया जहाँ एक्सेस नहीं है, ठीक है। फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड को हम क्या समझते हैं, वैल्यूअर है हम लोग, कि हम नहीं जानते कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को 143 में नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेयर करा के, यूपी में 143, बाकी हर स्टेट का अलग अलग है, तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्या?
अनलेस इट इज ए कमर्शियल, यहाँ तो वो कमर्शियल एरिया में है या कोई रेजिडेंशियल एरिया में है जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बन गए, तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बन गया, कमर्शियल प्रोजेक्ट बन गया, नेचुरल बढ़ेगी। लेकिन क्या खेतों में बढ़ जाएगी वैल्यू, क्या गाँव वगैरह में बढ़ जाएगी क्या? तो कुछ हमारी गलती है, वो 5-10% में आता है। हमेशा सहमत हूँ इस बात से, 5-10% एनपीए में हम जिम्मेदार होंगे, 90% हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। और ये प्रूव करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। बैंकों का कोलिजन इट इज ए कॉमन फिनोमिना, वेरी कॉमन फिनोमिना। अभी मैं एक रिसेंट केस में बता रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, मैंने कहा भाई इसके बारे में जानते हैं, इस एमपी के बारे में? तो बोला ये तो ज्वेलर है, ये तो उनको गिफ्ट दिया करता था ज्वेलरी, और साथ में कैमरे में रिकॉर्ड भी थे उसके, वहाँ पे कैमरे में। जब उन्होंने धमकी दी कि हम सीबीआई केस करते, तो बाद में कहते मेरे पास तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग है जब तुमने सोना लिया था मेरे से। तो देयर इनफैक्ट कोल्यूजन है तो बैंकर्स का बहुत ज्यादा। हमारा क्या कोल्यूजन है? आप राजकोट का केस एग्जाम्पल दे रहे थे, बैंक हैज ऑलरेडी फाइनेंस द लोन, वो बेचारा जाके उसको री-वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, एग्रीड कि वो चूंकि बिल्डर ने लेआउट चेंज कर दिया तो उसकी गलती हो गई, तो ही डज नॉट बिकम द कल्प्रिट। तो सही बात तो ये है कि हमारी गलती है, लेकिन 90% गलती हमारी नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत तो हमें भी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं जहाँ हमको प्रॉपर्टी का रेट नहीं पता लगता। अब आप कमर्शियल मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पे बिकी नहीं 10-10 साल से प्रॉपर्टी, तो आप रेट कैसे पता लगाते हैं? तो हमें कोशिश करनी चाहिए भाई वहाँ रेंट पता कर लो। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या रेंट होगा कि भाई जो आपकी जो रेंट होगा उससे ज्यादा 15-16 साल के रेंट के बराबर होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या रेट होगा? 50-55 साल के रेंट के बराबर होगा। एक साल का जितना रेंट आता है उसको 50 गुना मल्टीप्लाई कर लो, यूपी दिल्ली में यही रेट है। ऐसे ही कमर्शियल जो आपका है, जो रेंट आ रहा है 15 से 20 साल के बीच में जो रेंट आ रहा है कलेक्शन, ठीक है, थोड़ा बहुत 10% उसमें से आर्गुमेंट मानते हैं, 25 ही मानते हैं लोग जहाँ आर्गुमेंट ज्यादा होती है। तो यही होता है, ऐसे बहुत सारे के वहाँ हमसे गलती हो जाती है, हमसे भूल हो जाती है, जिसमें कुछ हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा सा हम अगर अपनी सावधानी रखेंगे तो 10% भी हमारी गलतियां नहीं रहेगी, ये मेरा कहना है। सर भगत सर बोलिए। नहीं सुने। खोल लो अपने ऑडियो। अच्छा, ऑडियो तो गेरा साहब भी बैठे हैं सर। और तो आपको कुछ बोलना है? कुछ बोलना है आपको? तो और सर किसी को कुछ बोलना हो तो सर, जो बड़े लोग हैं कम से कम, जो हमसे बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना, थोड़ा आशीर्वाद हो सर। ये तो हमारा अधिकार भी सर है ना। आपने बहुत अच्छा हमें नॉलेज दिया। ये तो ओवरऑल ये है कि वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव दैट इस तरह का आदमी आगे मिल जाए डू नॉट नो। रेगुलर कम्युनिटी हमें बड़ा खासियत है। तो यार अगर क्या मेरी वैल्यू है देखो Lakshman India, because I have very good so many properties in this area and there used to be no other area. I learned a thought, I'll prepare a list sometimes and then the next meeting I'll come up with some of these. थैंक यू सर। तो मेरे ख्याल में और कहीं कुछ किसी का तो कुछ सवाल होगा नहीं, तो मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि वोट ऑफ थैंक देते हुए प्रोग्राम को समाप्ति करें। थैंक यू सर। जैसा कि आज का टॉपिक था ना, एनपीए के कई कारण होते हैं, जैसा सब लोगों ने मेरे ख्याल से आज काफी जो है हम लोग को नॉलेज मिल गई होगी कि एनपीए किस कारण से होता है, कैसे होता है। ओपी वर्मा सर ने भी बताया काफी डिटेल में कि एनपीए के क्या कारण रहते हैं। थैंक यू सर। और इसी क्रम में जो है जो आज हमारे अतिथि शामिल हुए हैं इस हमारे वेबिनार में, थैंक यू सर। और हमारे आईवा के सभी मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आए और मीटिंग ज्वाइन किया। थैंक यू सर। इसी क्रम में जो है अगले मंथ में फिर मीटिंग होगी और फिर हम लोग सब लोग मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।